Good morning, everyone. Welcome to the third session of this series on New Income Tax Act. So, before start of the session, I would request everyone to please rise for the ICI motto. य एष सुप्तेषु जाग्रति य एष सुप्तेषु जाग्रति कामं 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 कामपुरुषो पुरुषो निर्मिमाणः निर्मिमाणः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्मा तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकः शतः सर्वे तदूनात्यपि कश्चन एतद्वैता 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 एतद्वैता. So, welcome everyone to the third session of third day on the series on New Income Tax Act. And today we have very learned speaker, say Vimal Punyama ji. So I would not waste much time. I would request Sikandar to please give the kind introduction. Thank you, Ravi. Before I formally introduce Vimal sir, I would like to take this opportunity to wish him happy birthday. Today is his 73rd birthday. It is a great privilege and honor to introduce today's first speaker, CA Vimal Punmia sir. He is a BCom graduate from 1971 and LLB in Generals in 1974. He is a rank holder, 22nd rank holder CA Inter and 35th rank in CA Final. He has a vast experience of last 48 years as a proprietor of Messrs Vimal Punamia and Company, and with the help of 25 assisted attending to nearly 1,000 resident and non-resident clients in a various areas, that is taxation, audit, company law, RBI, GST, cooperative society, stamp duty, registration and other matters relating to properties, appeals, search and seizure. He is attached to nearly 250 companies, trust firms as advisor, director, auditor or trustee. He is also a member of Standing Committee of TDS appointed by Income Tax Department. He is a life member of Cricket Club of India and various other clubs and associations. He has written numerous books on transfer of flats like stamp duty, registration, capital gain, search, seizure and survey. He has written various articles of public interest published in various newspapers and magazines like Times of India, Property Times, Chartered Accountant General, New Letter of Institute of CA, etc. He has been speaker at more than 2,500 seminars in India and abroad on topics of public interest, that is on union budget, income tax provisions, stamp duty and registration, cooperative societies, RBI's provision, and so on. In past, he visited USA in 1997 as a legal advisor to exhibition, that is India Property 1997, and he was a key speaker of various seminars chaired by High Commission of India in USA held at Chicago. He is attached to leading firm of tax expert, that is DM Harish and Company Advocates from 1975 to 1986. He has been recipient of various numbers of prestigious awards from Bharat Merchant Chamber, Accommodation Times, Rotary Club, Lions Club, so on.
Now, with this brief introduction, I request our present convener, CA Ravi Soni, to present moment to the sir. Request my core group member, Shreyans Dedia, to present CABF receipt fund to sir. Now I humbly request sir to take charge of the session. Good morning, friends. Good morning, convener CA Ravi Soni ji, my friend, Sikandar Yadav ji, Shreyans Dedia, Avinash Ramani sir, my colleague Rahul Punmiya, and Sneha Kothari. Friends, topic allotted today is search, seizure, and survey. What I am doing today is really a postman's job. Because whatever I will show here is prepared by my nephew Rahul Punmiya and Sneha Kothari. So before I start my lecture, what are the difference between 1961 Act and 2025 Act regarding to search, seizure and survey? I will just show you one clip of 5 minutes issued by Income Tax Department, and then we'll proceed further. So let us see for 5 minutes one small movie on red. कौन है आप? आपको किससे मिलना है? हम राजू भाई से मिलना चाहते हैं। लेकिन राजू भाई को मिलने का आपने समय लिया है? तुम अंदर जाओ, प्लीज अंदर जाओ। हमारा उनसे पर्सनल काम, आप प्लीज हमें उनसे मिलवाइए। भाई, आप लोग क्या बात है? राजू भाई नमस्ते, मेरा नाम विकास श्रीवास्तव है। मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ। बाकी सब भी इनकम टैक्स के अधिकारी। हम आपके घर की तलाशी लेना चाहते हैं। आप मेरा आई कार्ड देख सकते हैं। आप शायद मुझे जानते नहीं है। किसने भेजा है आपको? मैं आपके कमिश्नर साहब को फोन करता हूँ, चीफ कमिश्नर राजू भाई देखिए, हमारे पास आपके घर की तलाशी का वारंट है। अरे ऐसे बहुत वारंट देखे हैं मैंने। मैं अभी फोन करता हूँ, आपके फोन लाना। पापा एक मिनट, पहले मुझे इनका आई कार्ड और वारंट चेक कर लेने दीजिए। हेलो पापा एक मिनट, पहले मुझे वारंट तो चेक कर लेने दीजिए। करो। ये वारंट तो सही लगता है। देखिए राजू भाई, अगर आप चाहें तो हम सबकी तलाशी ले सकते हैं। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। आपको जो करना है कीजिए आप। देखिए ये आपका हक बनता है और हमें कोई इतराज नहीं। नहीं नहीं, आप कीजिए, आपका जो कोई भी। ठीक है। दूसरी बात यह है राजू भाई कि हमें आपके इलाके से 2 सम्मानित और इज्जतदार इंसानों को पंचों के रूप में बुलाना। देखिए ये मेरी बात सुनिए, आप नाम सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान में रखिए कि उन दोनों को तलाशी पूरे होने तक यहाँ मौजूद रहना होगा। देखिए सर, बात यह है कि मैं नहीं चाहता कि बाहर वाले आके जाने हमारे घर में क्या हो रहा है क्या नहीं। आपको जो कुछ भी करना है आप कर लीजिए ना। जी नहीं राजू भाई, मैं समझता हूँ, लेकिन तलाशी सिर्फ विटनेस के सामने हो सकती है। हम पापा, विटनेस का होना कानूनन जरूरी है और फिर ये हमारे अपने हित में है। हम दोनों इनके पड़ोसी। एक्सक्यूज मी, मेरे बेटे का स्कूल का जाने का वक्त हुआ है, क्या ये स्कूल जा सकता है? जी हाँ, लेकिन पहले स्कूल बैग चेक करना होगा। प्लीज, ये मेरी पर्सनल अलमारी है, इसे आप लोग हाथ मत लगाइए। इसमें मेरी कुछ पर्सनल चीजें हैं। मैडम, आप प्लीज परेशान मत होइए। इस अलमारी की सर्च मैं खुद ही करूंगी, तब यहाँ कोई आदमी नहीं। ओके?
लीजिए पापा पानी। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। पानी। नहीं, आई एम फाइन, प्लीज। क्या हम हमारे फैमिली डॉक्टर को बुला सकते हैं? हाँ जी, सर। जरूर। प्लीज यहीं पर लेट कर कीजिए। राजू भाई, आपका बीपी थोड़ा बढ़ गया है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। आप ऐसे भी हाइपरटेंशन के मरीज हैं। ये दवाई ले लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, चीयर अप। पापा घबराओ मत, इनकम टैक्स वाले टैक्स ही तो लगाएंगे ना। जो भी टैक्स बनेगा हम उसे भर देंगे। आप प्लीज घबराइए मत। बहुत सारी ज्वेलरी है यहाँ। ये सारी ज्वेलरी मैंने पिछले 20 साल में इकट्ठा की है। आप ये सारी ज्वेलरी लेकर जाएंगे? देखिए मैडम, जो ज्वेलरी आप सबने अपने रिटर्न्स में फाइल किया उसे हम छोड़ देंगे, और वैसे भी हम घर के सदस्यों के हिसाब से रूल्स के मुताबिक कुछ ज्वेलरी छोड़ देते हैं। मैडम खाना तैयार है। खाने का समय हो रहा है। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो हम खाना खा लें। जी ऑफ कोर्स। वैसे आप सब लोगों के लिए भी बनाया है। जी नहीं शुक्रिया, हमारे लंच के पैकेट्स हमने बाहर से मंगवा दिए। थैंक यू। जी। अरे ये सब कहाँ ले जा रहे हैं आप लोग? ये सब क्या कर रहे हैं? एक्सक्यूज मी, आपकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर। मुझे कोई स्टेटमेंट नहीं देनी। राजू भाई सुनिए, ये देखिए, ये आपकी डायरी, पेज नंबर 3 पे लिखा है कि रमेश और सुरेश ने आपको और आपकी पत्नी को 50-50 लाख रुपयों की गिफ्ट। पापा घबराइए मत, जो भी ये पूछ रहे हैं इनका सही सही जवाब दीजिए। अच्छा है कि सारी बातें साफ हो जाए, और वैसे भी जो भी टैक्स बनेगा हम दे देंगे पापा। तो ये रमेश और सुरेश कौन है, और इन्होंने आपको और आपकी पत्नी को इतनी बड़ी गिफ्ट क्यों दी? अब आपसे क्या छुपाना, ये सब मैंने गलत एंट्रियां ली थी। श्रीवास्तव साहब, क्या आपने मेरी ऑफिस, फैक्ट्री, गोडाउन हर जगह रेड कर दी है? जी हाँ राजू भाई, विभिन्न शहरों में आपके सारे ठिकानों को कवर किया। अरे क्या कर रहे हैं आप? वहां मेरे करोड़ों का सामान रखा हुआ है, करोड़ों का माल रखा हुआ है। मेरा बिजनेस ठप हो जाएगा, बर्बाद हो जाऊंगा मैं। नहीं राजू भाई, चिंता मत कीजिए। देखिए, नए रूल्स के मुताबिक बिजनेस स्टॉक को जब्त नहीं किया जा सकता, उसे इवैल्यूएट करते हैं, और जो एक्सेस स्टॉक निकला सिर्फ उस पर टैक्स लगा। ओके? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। राजू भाई, हमारी सर्च पूरी हो चुकी है। हमने ये पंचनामा बनाया, इसमें आपसे घर से पाई गई सारी चीजें या जब्त की गई चीजों की लिस्ट है। इसे आप ध्यान से पढ़िए और फिर साइन कीजिए। उसके बाद पंचों की साइन ली जाएगी। इस पंचनामे और एनेक्स्चर्स की एक-एक कॉपी आपको भी दी जाएगी। ये रही आपकी। अब हमें इजाजत दीजिए, अगर आप चाहें तो हमारी तलाश ले सकते हैं। नमस्ते जी, नमस्ते। चलिए। हम सब लोग तो खामखा घबरा गए थे। इन सब लोगों का व्यवहार तो कितना अच्छा था। देखिए पापा, मैं हमेशा आपको समझाती थी कि हमें अपनी आमदनी पर पूरे समय से अपना टैक्स दे देना चाहिए, मगर आप तो इनकम टैक्स का नाम लेके ही घबराते थे, और आपका बीपी भी हाई रहता था। चलिए, अब सारा टेंशन दूर हुआ ना, और भविष्य में किसी भी टैक्स की कोई चोरी नहीं करेंगे, और देश के अच्छे नागरिक बनेंगे, है ना पापा? हाँ बेटी। ये वाला कि ये वाला? अपन ने 5 मिनट का देखा। अभी मैं आपको बताता हूँ
वाई रेड, रेड के बाद क्या करने का है, क्यों होती है, कैसे अवॉइड करें, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट. और वेरेवर सम अमेंडमेंट इज देयर इन 225 एक्ट, वो भी उधर ही आपको पॉइंट आउट करूंगा. एंड में लास्ट में वॉट एवर अदर डिफरेंसेज बिटवीन 61 एक्ट एंड 25 एक्ट वो आपको बता दूंगा. 99% प्रोविजंस आर सेम, सेक्शन इज डिफरेंट. ये बोल सकते हैं ओल्ड वाइन इन न्यू बोतल, प्रैक्टिकली वही है 95. एक बात उसके पहले मैं बोलूँ, 13 years back on the same day I given lecture in your study circle or our study circle on again search and seizure survey, and that day also my birthday was there, exactly 13 years back. And that time I was introduced as a 70-year-old, but in fact I was 60 that time, but now I'm 73. क्या कर रहे हैं? क्या चाहिए? बराबर ही था. Now friends, we all know our income tax department, to what extent they are intelligent. So how they get information? Or kabhi kabhi they get accurate information. They will come to your home, go to a particular cupboard, open particular drawer and get 5 crore rupee or 50 lakh rupee or 2 crore rupee. So what is the basis of that? So what is source of raid? Let us explain, I will explain to you. First of nowadays, after everything is online, Financial Intelligence Unit, they keep track on the high value transactions. So when you purchase the property for 10 crore, 20 crore, 30 crore, or big transaction of 1,000 crore, international transaction, local transaction, or some remittance have come from foreign country, big gift, those transactions are in, they scrutinize that and find out whether something is there or not. Second, inside portal. Other department also send the information if customs some raid is there, or some GST some raid is there, so they also inform to income tax department, vice versa, income tax inform to them. So that information also they get. Then 90% raid come on basis of person who give information. Their work is only to give information to the income tax department, and for that they get 10%. 90% raid is because of that. And they are they are VIP of the department. They enter in DDI office at any time, go out any time. And they have ready-made office in Lohar Chal, Javri Bazaar, Bhuleshwar area, and they keep track. So if our client, of course we all are chartered account, we don't have that kind of money, we are subject to raid. But sometimes client is raided. And if we are involved in that transaction directly or indirectly in unaccounted money, then we are also party to that. Nowadays, let me finish this first. And tax evasion petition. So somebody, two partners are fighting. Two business competitors are there. One is doing very well, another is not doing well. So he complained against the person who is doing well. And that way, evasion information comes. Bogus transaction, I make bogus purchases. Bogus expenses, I claim. And other parties raided and the information comes from that person. Bogus sale, I have some another source of income which I cannot account for in normal business. So I show the bogus sale and show the profit and pay the tax on that, but still that is the nature of my source is bogus. Bogus loan taken, bogus loan given, entry, what is Hawala transactions, bogus commission taken, commission given, bogus penny stock, long-term capital gain, bogus share premium. So if amount involved is small, 1 or 2 crore, they don't bother. But amount involved is 100 crore, 200 crore, then of course they come in the limelight. Then bogus donation given to various charitable trusts and cash is taken. Bogus donation given to political parties. Bogus CSR expenses. Information gathered during the search of other party. Some other party is raided and my transaction with that party, then I will be subject to cover. Basically, raid come. Actually, raid come. In Bombay particularly, if you go back to 1985 or 75, Bombay only one additional DI was there, supported by 4-5 DDI, and they used to conduct 4,000 to 5,000 raid particularly. Now, total raid take place in Mumbai is 50 to 100. Against 5,000 with 4 officers, now today they have more than 50 officers, Director General, 2 DI, then again 10 additional DI, then each additional DI have 4 DDI, again inspector, clerical staff. So 50 senior officers are there and they conduct 50 to 100 raid per year.
Last year in whole Bombay, 113 raids were conducted. So how they get, now what is the source of that? How they select कि किसको cover करना है, किसको नहीं करना है. So first, rest you all know, but one main item is information from the informer. The once department get information, that file go to the Director General of Income Tax Department. And he said, after reading that, with his experience, one person become Director General, it means he is in department for more than 25 to 30 years. So he has his own background. Then he select here, this is a particular candidate for the purpose of raid. Once information received, even raid take place or not take place, file is stored there. So you are already there in their storage. तो जब भी काम नहीं होएगा वो फाइल निकलने वाला है. तो अपना जो क्लाइंट है ऑफिस में किसको अलर्ट करने का, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. सो दे इन प्रैक्टिस दे फॉर्मूला कॉल्ड 80-20. If you scrutinize your collection of the fees, your 20% client pay 80% fees, and 80% client pay 20% fees. So those 80% client who pay your 20% fees, they are not the target in normal course. Those clients who pay 80% fees like builders, jewelers, doctors, film star, of course chartered accountant you can exclude because अपना income tax से चोली दामन का साथ है. But doctor, film star, builder, jeweler, they are always in the limelight. So those clients we must scrutinize, must educate them by showing this clip or whatever other information we can give. कभी रेड आएगा तो these are your right, these are your duty, कभी आएगा, कभी नहीं आएगा, किस सिचुएशन में आ सकता है, किस सिचुएशन में नहीं आ सकता है, what precaution you take, a raid don't take place. So that purposely for us it is important. Now they get the information. After getting the information, DG decide a particular forward file to DI. All secret, nothing will be disclosed. DI will forward to additional DI. Additional DI, depending upon the experience of his officer, he will select one DDI. And he will give him the file, take this file, study for 1 minute and give your report. So he will study the report. Now what is the basic information? He is a builder, he sell the flat, take money under the table, and same case brought by way of a loan transaction. He is the jeweler, he take the 22 carat ka rate, but still he give only 18 carat. So then that officer, whether he, so many issues are there now. Collecting the cash, taking the entry, or jeweler mein selling 22 carat on officially, but really give 18 carat. So 4 carat money is generated, and how we account for the stock, another thing. Department will go to the builder's office and really go as a customer, find out whether he is really taking cash or not. Jewelry mein, they will really purchase the jewelry from the jeweler, send to the mint and find out what, so the whole homework will be done. After doing the whole homework, they will go to he will make a report of 40 pages, reply to more than 250 questions. And end of the day, if it is revealed by raiding a particular person, department is going to get minimum 100 crore rupee income outside books of accounts. That is the minimum criteria for Bombay. That is not in the Income Tax Act. That is a practical aspect of the search and seizure in their department. But really they don't search even those person who have 100 crore. The person who have more than 200 crore, 300 crore, 500 crore, those are the target. अभी वो बोलते हैं ना आग लगता है तो सूखी लकड़ी गीली लकड़ी सब जलती है, आटा पीसने में सब कुछ साथ में आटा हो जाता है. तो वो सिचुएशन में कनेक्टेड पर्सन, फॉर एग्जाम्पल दे सेलेक्टेड पर्टिकुलर बिल्डर और पर्टिकुलर इंडस्ट्री और पर्टिकुलर ज्वेलर, फिर उसका CFO, CO, चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर इन्वॉल्व है तो स्टडी पूरे का होएगा, CA का भी स्टडी होगा, व्हाट इज द रेपुटेशन. Otherwise, normally we'll see when client is raided, his auditor is also raided on the same day. रूल तो ऐसा भी है, क्लाइंट को रेड आएगा तो ऑडिटर के उधर जाना ही जाना है उनको, बट मे नॉट कंडक्ट सर्वे सर्च, दे मे कंडक्ट सर्वे एंड मे टेल देम भाई अच्छा आपका ये पर्टिकुलर बिल्डर को हमने रेड किया है, इससे कंडक्टेड फाइल हमको आप दे दो. और ऑफिशियली उसके ऑफिस में भी सर्वे होगा, पर वो लिमिटेड पर्पज के लिए होगा. जाने के बाद उसको मालूम पड़ा दूसरा भी बहुत खजाना मिल गया है तो देन ही ऑल्सो बी कन्वर्टेड टू सर्च. सो CA को भी बहुत केयरफुल रहने का है, पर्टिकुलर उन क्लाइंट के साथ हु इज डूइंग अनअकाउंटेड इनकम. मैं एग्जांपल बताऊं तो रिसेंटली मे बी 4-5 years बैक डिपार्टमेंट वांटेड टू रेड वन ऑफ माय क्लाइंट इन भाईंदर. ही इज डूइंग 100% वाइट बिजनेस, बट उनको तो लगा है कि पॉलिटिकल रीजन था, वो पार्टी को एक पार्टी में था, दूसरी पार्टी का पॉलिटिकल रीजन के साथ, और आजकल ज्यादा करके पॉलिटिकल रेडी ज्यादा हो रही है. अब उनको मालूम पड़ा कि आदमी वाइट फुल माल तो वाइट में बेचता है, इधर रेड डालने का गुंजाइश कैसा है, कुछ प्रूफ तो करना पड़ेगा, रिकॉर्ड तो लाना पड़ेगा. हाई कोर्ट विल चैलेंज इन द हाई कोर्ट आर्टिकल से रेड इज इनवैलिड. पर इनवैलिड का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. इफ हाई कोर्ट इवन से रेड इज इनवैलिड,
But whatever paper found during the course of search, whatever unaccounted income, cash, jewelry, unaccounted investment, unaccounted expenditure is found, that will be taxed. तो एंड रिजल्ट क्या हो गया? रेड इनवैलिड है पर मिला उस पर टैक्स तो बढ़ने का है, तो मतलब ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट डाइड. तो एग्जैक्टली पर्पस सर्व हुआ ही नहीं, हाईकोर्ट जाके भी कुछ मिला नहीं है, तो रेड हुआ तो भी कुछ आपका ऐड नहीं हो सकता है. तो उस क्लाइंट के उधर इनकम टैक्स वाला आया. फर्स्ट डे ही केम एज अ कस्टमर. भाई मेरे मंदी का मार्केट था, 2019-20 की बात है, कि मेरे को आपके यहाँ पे 10 फ्लैट खरीदने का है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, रेट बताओ. तो वो टाइम फाइंडर में रेट थी 3,200 रुपये पर स्क्वायर फीट. तो हमारे क्लाइंट के उधर से जो भी सेल्स डिपार्टमेंट का आदमी होगा, लेडी होगी, उससे कहा सर 3,200 पर स्क्वायर फीट लगेगा, पर आप 10 फ्लैट ले रहे हैं तो आई विल आस्क माई ओनर एंड आई थिंक कंसेशन मिल जाएगा आपको 100-200 रुपये का. तो एंड में 3,000 का रेट ऊपर से आ गया. ऑफिसर बोलता है कि मेरे को तो कैश देने का है, कैश का मनी लगाने का है, तो आप चेक कितना लेंगे, कैश कितना लेंगे. द लेडी से वी डोंट एक्सेप्ट कैश. क्यों? तो बोला पूछो तो सही सेठ को जाके, 10 फ्लैट एक साथ में मिल ले रहा हूँ. तो गया तो केस सेठ ने बोला नहीं हमारा कैश बिजनेस नहीं है, हम कैश नहीं लेते, फुल चेक ही लेते. तो रियल में वो चेक ही लेता है. सेकेंड डे ऑफिसर, अब उसको तो कैसा भी पकड़ने का है, तो वो ऑफिसर एक्चुअली 2 दिन के लिए उसने होटल में रूम बुक किया उस जगह पे, अपने वाइफ बच्चे को सबको लेके आया. और नॉर्मली ऑफिसर क्या होता है, वो 300 रुपये का ब्रीफ केस उसके साथ होता है, 12 रुपये की पेन इधर होगी, वो वैसा नहीं आया, एकदम सच धस के आया. मतलब जैसे शादी में अपन जाते हैं वैसे सूट बूट पहन के अच्छी तरह से आया, बच्चों को भी लेके आया, वाइफ को भी लेके आया. और रियली इज सिंसियर बायर है कि वाइफ को बच्चों को सबको फ्लैट दिखाएगा देन लेगा. तो ही केम इन दैट वे. वो बोला मैं रहूंगा भी इधर, 2 फ्लैट रहने के लिए लेना है, 8 फ्लैट इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है. काफ़ी नेगोशिएशन हुआ. फिर उसने लेडी को बोला अगर समझो तुम्हारा सेट एग्री करता है कि 2,000 का एग्रीमेंट करेगा, 1,000 रुपया कैश में लेगा, तो वर्किंग क्या होएगा. वो लेडी बेचारी सोची कि 10 फ्लैट लेने को आया है, तो उसने वर्किंग करके बता दिया. लेकिन उसने बोला कैश तो लेते नहीं है, पर आप बोल रहे थे मैं वर्किंग करके देती हूँ. देन इसे कि 2,500 अगर चेक होगा, 500 कैश होगा तो क्या होगा, तो वो भी वर्किंग किया. एंड में उसने बोला भी मैं टोटल 2,700 आपको कैश में चेक में दे सकता हूँ, 300 तो आई विल गिव कैश ओनली. तो आप पूछ लो सेठ को. वो लड़की वापस गई ऊपर, वापस जाके पूछ के सेठ ने बोला एक काम करो, हम कैश तो नहीं लेते हैं पर हम आपको 2,700 में फ्लैट ही दे देते हैं. तो फिर तो बात खत्म हो गई. फिर उसको लगा ये रियल में कैश लेता नहीं है, पर वो वर्किंग तो लेडी का सब बना के लेके चला गया. 10 दिन बाद रेट भी डाल दी उस पार्टी पे. बिलीव भी उसके घर पे उसकी वाइफ और उसकी मदर के पास में 3,000 आइटम थी, सोने चांदी डायमंड वगैरह की. और सच एक्सप्लेनेशन कि उस आइटम के हर ज्वेलरी के पीस के ऊपर एक टैग लगा था, सीरियल नंबर 39 और वैल्यूएशन रिपोर्ट, ग्रॉस वेट इतना, नेट वेट इतना. तो आप अभी 50 डायमंड नेकलेस होंगे, हाउ यू विल टेल एक्चुअली. वैल्यूएशन रिपोर्ट में 3,000 आइटम है, किधर आप ढूंढने को जाएंगे. सो सीरियल नंबर के साथ था. एंड बिलीव मी उसके यहाँ पे पूरा का पूरा 3,000 आइटम टेली हुआ. खाली 10 ग्राम की गोल्ड की चेन थी, वो अनअकाउंटेड थी, वो नहीं टेली हो रही थी. और वो बिलीव मी मैंने ही उसको गिफ्ट में दी थी, उसकी डॉटर की गिफ्ट है बर्थडे के ऊपर. मैं बोला साला मैंने गिफ्ट दिया, कोई अनअकाउंटेड है, बाकी सब अकाउंटेड है. तो पर फिर भी रेट डाला गया. एक बार रेट डाला, उल्टा सुल्टा एडिशन तो करना ही है उसको. ETIB का एडिशन किया, 25-25 करोड़ का डिमांड खड़ा किया. मैटर वेंट इन अपील, वी सक्सीडेड एवरीवेयर बिकॉज एवरीथिंग वाज इन नॉर्मल कोर्स. सो डिपार्टमेंट पूरा होमवर्क करके उसको मालूम पड़ेगा कि इसके यहाँ पे 100 करोड़ से ज़्यादा मिलने वाला है तो ही रेट ऑथराइज होता है. तो अपने जो छोटे छोटे क्लाइंट उसको इग्नोर कर सकते हैं. बट राइडर ये है, इफ बड़े आदमी पे रेड हो गया एंड यू आर कंडक्टेड डायरेक्टली इनडायरेक्टली, हवाला लोन देने के लिए, कमीशन लेने के लिए या और भी कोई तरीके से, देन आपको भी टारगेट हो सकता है. हाँ किया उससे, बिकॉज पेपर में वर्किंग उससे करा लिया अकाउंटेंट से और लेडी से. ये नई एम्प्लॉय थी, उसको बेचारे को मालूम नहीं. उसको बोला अगर तुम्हारा सेट एग्री करता है 500 रुपये लेने का तो क्या होएगा, 1,000 रुपये लेने को एग्री करता है कैश में तो क्या होगा. उसने सब वर्किंग करके दे दिया, वो लेके चला गया. वो बेसिस हो गया उसका, पहुंच गया. वो तो बड़ा प्रोजेक्ट था उसका, तो कम से कम आधा भाईंदर उसका ही बनाया हुआ है. उसने 2 बिल्डिंग बनाई थी, गोल्डन नेस्ट ओल्ड एंड न्यू. तो मैं क्या समझा पास में होगा, पर दोनों के बीच में 10 किलोमीटर का डिफरेंस है. तो वो बड़ा आदमी था और वो था पॉलिटिकल. वो अर्लियर ही बाजी ने कांग्रेस, देन ही शिफ्टेड टू समवेयर एल्स एंड सब वो दुनियादारी वही थी पूरी. नाउ व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन इनकम टैक्स सर्वे, इनकम टैक्स रेड एंड इनकम टैक्स. एक्चुअली क्या हो गया है, इनकम टैक्स सर्च इज द रियल वर्ड ऑफ इनकम टैक्स एक्ट. प्रैक्टिस में अपन बोलते हैं रेड, ओ आके मतलब किसी ने आदमी ने आके आपको ऊपर कवर कर लिया. और सर्वे मीन्स एक स्मॉल रेड. सर्वे कैन टेक प्लेस ओनली एट ए बिजनेस प्रोमाइसेस, नॉट एट ए रेजिडेंस. लेकिन मैंने घर का एड्रेस दिया है बिजनेस के अंदर भी, GST नंबर घर के एड्रेस से लिया, देन सर्वे कैन ऑल्सो टेक प्लेस रेजिडेंस.
सर्वे में वो कोई लेके नहीं जा सकता है कुछ भी, मैक्सिमम उसका कॉपी करके अकाउंट लेके जा सकता है, बट आपका वैल्यूएबल कैश, ज्वेलरी, स्टॉक उसको टच नहीं कर सकता है, वह रेड में वो कर सकता है। तो बहुत बार आदमी आता है सर्वे करने को, जब उसको लगता है माल पानी बहुत ज़्यादा है इधर, तो दे कन्वर्ट इनटू रेड ऑल्सो मेनी टाइम। नाउ अप्रूवल कैसे आती है? सबसे पहला अप्रूवल आती है, नोट इज प्रिपेयर्ड बाय डीडीआई, मैंने जो बोला 100 करोड़ वाला, इट गोज टू एडिशनल डीआई, देन प्रिंसिपल डीआईटी, देन इट इज डायरेक्टर जनरल, एंड अथॉरिटी होती है डायरेक्टर जनरल। एक मेरा क्लाइंट का एग्जाम बताता हूँ, एक डायरेक्टर जनरल मेरे क्लाइंट का बहुत अच्छा दोस्त था, उस टाइम उसकी प्रोजेक्ट में फ्लैट खरीदा था, तो काफ़ी घर पे आना जाना हो गया। रात को डायरेक्टर जनरल को मेरे क्लाइंट ने खाने पे बुलाया, साथ में खाना खाया, वो चला गया, ये भी चला गया, और सुबह 6 बजे इनकम टैक्स वाले मेहमान आ गए रेड डाल के। तो उसने डायरेक्टर को फोन किया सर, तो उसने बोला वो मेरे को मालूम नहीं, 2 महीने पहले अथॉरिटी मेरे को दिया होगा, दोस्ती अपनी अलग साइड में है, ये जो आपने क्लिप में देखा होगा, दोस्ती अलग चीज़ है, और इनकम टैक्स वाला किसी का भी दोस्त होता नहीं है, ये बात पकड़ के रखो। कितने भी दोस्ती आप मन में अलर्ट रहो, समझ गए, आपको चाय भी पिला रहा है, बिस्किट खिला रहा है, आप उसको दिवाली गिफ्ट दे रहे हैं, वो ले रहा है, सामने से गिफ्ट भी आपको दे रहा है। मेरे को तो बहुत सारे ऑफिसरों ने फ्रेंडशिप ट्री जो होता है वो हमेशा देता है दिवाली होली पे, लेकिन वो कोई वो मन में अलर्ट रहने का कि इनकम टैक्स वाला है, और सगा माँ की उधर भी रेट डालेगा तो छोड़ने वाला नहीं है। सो दोस्ती दोस्ती कोई अपने बोलते मेरा फ्रेंड है, कोई फ्रेंड में नहीं है इनकम टैक्स वाला, वो अपना काम कर रहा है, वी हैव टू बी अलर्ट। अभी वर्ड में इसमें क्या हो गया, पहले अपन बोल रहे थे कि डायरेक्टर जनरल है, ये है, अभी उसका वर्ड एक टेक्निकल वर्ड दे दिया, कंप्यूटेड अथॉरिटी, तो वो सब खाली कॉस्मेटिक चेंज है, उसमें हम डिटेल में नहीं जाते अपन। नाउ सर्च प्रोसेस, मूवी मैंने आपको बता ही दिया है, पावर ऑफ ऑथराइज ऑफिसर टू एंटर एंड सर्च द प्रेमाइसेस। अभी वो एंट्री कैसे करेगा? नॉर्मली रेड आएगी, पहले तो रेड रात को 12 बजे भी आती थी, 1 बजे भी आती थी। एक महाराजा आया था, पता नहीं गुजरात से किधर से, 1 बजे इंडिया बॉम्बे में आया, 2-3-4 बजे के पहले उसको सब ज्वेलरी बेचा के 4 बजे की फ्लाइट से वापस जाने का था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रात को 12 बजे 1 बजे भी रेड उसको डाली। लेकिन नाउ डेज प्रैक्टिकली 90% केस में रेड आती है सुबह सुबह 6-7 बजे, जब आदमी घर पे ही होता है, ऑफिस के लिए नहीं निकला है। और वो टाइम पे क्या करता है, बहुत सारे आदमी गले नहीं खोलते, दरवाजे नहीं खोलते, वो खिड़ देख लेते हैं कांच में से, वो इनकम टैक्स वाले खड़े हैं, या 5-6 लोग खड़े, तो उसको डाउट जाता है इनकम टैक्स। अभी वो क्या होगा, समझो आएगी टीम 10 आदमी की, लेकिन आपको ग्लास के सामने एक ही आदमी दिखेगा, बाकी सब छुपे हुए होंगे लेफ्ट राइट में। जैसा ही आपका बेल घर खोलेंगे, एक साथ में वो एंट्री करेगा कि आई एम फ्रॉम इनकम टैक्स, उसके पीछे पूरी टीम आ जाएगी। व्हेनेवर रेड इज टेक प्लेस एट होम, एक लेडी ऑफिसर भी साथ में आएगी, पुलिस भी साथ में आएगी, 2 आदमी, एक लेडी कांस्टेबल, एक जेंट कांस्टेबल। लेकिन ऑफिस में होगा तो जेंट्स कांस्टेबल ही आएगा, पुलिस लेडी नहीं आएगी, ऑफिसर भी लेडी नहीं होगी, तो चलिए, पर घर पे आएगा तो लेडी को साथ में आना ही आना है। सर्च इंडिविजुअल एंटिटी एंड लीविंग द प्रेमाइसेस, जब भी वो आएगा तो पहले ऐसे पास्ट में भी हुए, एक हमारा क्लाइंट था अंधेरी में, मोहनलाल जी करके, वो कभी भी जिंदगी में उसने टाइप करके कागज नहीं रखा, 2 नंबर का पैसा देता था, एक अपना पेपर रखता था, 5000 दिया तो उसको 5 लिखता था, पार्टी का नाम लिखता था, और ऐसा करके 2-3 सीट पेज के अंदर जो भी उसका इन्वेस्टमेंट होता था, और ऑलवेज 100% यूज्ड टू कीप विद हिम ऑन इन हिज पॉकेट। सोएगा तो भी साथ में उठा के लेके सोता था। रेड आया, टाइप किया हुआ कागज उसको मिला 3 पेज का डिपार्टमेंट को, और वो बोलता है देखो ये आपका इन्वेस्टमेंट है, एक्चुअली करेक्ट है, जो हाथ से लिखा था वो भी टाइप किया हुआ है। वो बोल रहा है यार मेरा कभी टाइप किया ही नहीं जिंदगी में कोई कागज। तो बाद में ऐसा मालूम पड़ा कि इनकम टैक्स वाला अपने साथ में लेके आया था, टाइप करा के, जो इन्फॉर्मर था उसके पास ये जेब के कागज की फोटोकॉपी खींच ली होगी उसने, और बाद में उसको टाइप करा के इनकम टैक्स को दे दिया 10% के चक्कर में, और उसके ऊपर टाइप किया हुआ कागज मिला। देन व्हाट हैपन, लॉ इज अमेंडेड कि कोई भी ऑफिसर पहले आएगा तो बोलेगा भाई पहले हमारे को सर्च करो, हम कुछ कागज तो लेके नहीं आए। अब उसमें क्या होगा, अगर कोई लेडी ऑफिसर आ गई है, आप बोलो मैं इसको सर्च करेगा तो वो नहीं अलाउ करेगा, लेडी घर की ही लेडी ऑफिसर को सर्च कर सकती है। लेडी ऑफिसर को आप बोलेंगे मैं सर्च करूं, वो अलाउड नहीं होगा। आपकी वाइफ, आपकी डॉटर, आपकी बहन, वो लेडी को सर्च कर सकती है अगर करना है तो। मैं नॉर्मल आदमी की भी सर्च करता नहीं है, बोला साहब आप अपना काम चालू करिए। ब्रेकअप और ओपन लॉक इन एक्सेस रेस्ट्रिक्टेड एरिया, अगर आपने घर के बाहर ही आपने दरवाजा खोला ही नहीं, आधा घंटा हो गया, देन इनकम टैक्स वाला खड़ा रहेगा, जाएगा नहीं। ही विल गो टू पुलिस स्टेशन, एक आदमी को भेजेगा, 2 आदमी तो पुलिस के उसके बाद है ही ऑलरेडी, या नहीं आए तो वहाँ से फटाफट मंगा लेगा, और पुलिस के प्रोटेक्शन में दरवाजा तोड़ा जाएगा। घर के अंदर आने के बाद इफ कबर्ड इज देयर, सम लॉकर इज, आप बोलो चाबी तो मेरे पास है ही नहीं, घर में किसके पास है मुझे मालूम नहीं, वो बोलेगा लॉकर किधर है, या लॉकर की चाबी मिल गई और लॉकर किधर मालूम नहीं पड़ रहा है, तो दे हैव ऑल द पावर आफ्टर मेकिंग ए प्रॉपर पंचनामा, कॉल द चाबी तोड़ने वाला जो भी आदमी आएगा और आपके सामने ताला वाला भी खोल सकता है, ये भी उनके पावर में है। इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट फॉर इन्फॉर्मेशन,
तो बुक्स के अंदर भी वो वेरीफाई देख सकता है कोई। नॉर्मली तो क्या होता है, रेड का मतलब क्या है, अदर देन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स में लिखा है वो तो इनकम टैक्स को मालूम ही है, इनकम टैक्स के लिए ही लिखा गया है, पर इवन देन दे वेरीफाई, बोगस कमीशन दिया होगा, बोगस एंट्री लिया होगा, बोगस सेल होगा, बोगस परचेज होगा, तो दे कैन वेरीफाई ऑल दिस थिंग्स। सीक असिस्टेंट फ्रॉम द पुलिस वेरेवर नेसेसरी। अब कुछ आदमी, आपको 2 एग्जाम्पल बताता हूँ। एक बार इनकम टैक्स ने भिंडी बाजार में रेड डाला, बहुत सालों पहले, 30-40 साल पहले। जैसे इनकम टैक्स की सफ़ेद गाड़ियाँ घुसी उसमें, 5-5 ऑफिसर एक ही गाड़ी में थे, भिंडी बाजार में इतना मारा उन लोगों को, उसके बाद इनकम टैक्स वाला भिंडी बाजार में गया ही नहीं आज दिन तक। ऐसा ही एक बार सेल टैक्स डिपार्टमेंट ने ओपेरा हाउस पे रेड डाला, सब ऑटो डीलर्स के ऊपर, और जितने भी ऑटो डीलर है मैक्सिमम आर ऑल पंजाबीज और सरदार जी। अब सरदार जी लट लेके आ गए रोड के ऊपर, और रेड भी मतलब छोटा मोटा रेड नहीं था, 400-500 सेल टैक्स के ऑफिसर आ गए और 100-200 डीलर के ऊपर। पहले ऐसा ही होता था, ब्लैंक पंचनामा लेके आते थे, कुछ भी नाम लिखा, 5 नाम देखा, अंदर घुस गए। तो वो टाइम सब सरदार जी रोड पे आ गए और इतना सेल टैक्स वालों को मारा, कोई चर्चगेट की तरफ, चटनी रोड की तरफ भागा, कोई किधर भागा, कोई किधर भागा, और पुलिस भी खड़ी थी, पुलिस की 2 वैन, पर वो बोले मारो सालों को सबको। और बिलीव मी, उसके बाद कभी भी ऑटो डीलर के ऊपर सरदार जी पे सेल टैक्स का या जीएसटी का रेड आया ही नहीं। आया होगा तो इंडिविजुअल आया होगा, ग्रुप में नहीं आया होगा। बहुत सालों पहले मुझे याद है, मैं जिस बिल्डिंग में ऑफिस है मेरा, नीलकंठ डिवीजन बिल्डिंग, वहाँ पे मनी लेंडर बहुत रहते थे पहले, फाइनेंसर थे, अभी तो निकल गए, अभी सीए को ज़्यादा आगे। वो टाइम पे वहाँ पे ब्लैंक पंचनामा लेके समवेयर इन 1985 इनकम टैक्स वाला हर ऑफिस में बात देखता, बैंकर एंड फाइनेंसर घुस जाता है। अगर ऑफिस एडवोकेट का और सीए का काम भले अंदर बैंकिंग का चलता है, उसको नहीं कवर करते थे, पर बाहर बैंकर लिखा और मनी लेंडर वर्ड आ गया, उसको कवर किया। लेकिन वो अभी सब बंद हो गया है, अभी सेलेक्टेड रेड होती है और सक्सेस होती है। सबसे बड़ी बात क्या है, सक्सेस होती है। सीजर बुक्स ऑफ अकाउंट, डॉक्यूमेंट, मनी एटसेट्रा फ्रॉम द सर्च प्रीमाइसेस, दे हैव राइट टू सीज एवरीथिंग, पर मेनली उनका टारगेट 4 पॉइंट में होता है। कैश फाउंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्च, अनअकाउंटेड ज्वेलरी फाउंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्च, अनअकाउंटेड इन्वेस्टमेंट फाउंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्च, अनअकाउंटेड एक्सपेंडिचर फाउंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्च। ये उनका मेन टारगेट होता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट तो सर्वे करके भी ले सकते हैं, रेड डालने की क्या जरूरत है, तो दे डोंट वांट टू इंक्रीज नंबर ऑफ रेड। और पार्लियामेंट में डिस्कस होता है ये साल में कितना रेड गया, कितना मिला, और कौन से मतलब व्हाट आर द मेन रिजल्ट। तो बाद में एंड रिजल्ट ये हो गया कि ये डिपार्टमेंट का वन टाइप ऑफ हेरेसमेंट है, तो फिर रेट कम होती गई। मेरे को बात याद आती है, 1992 की बात होगी, वीपी सिंह वाज द फाइनेंस मिनिस्टर, और एक बार वो फाइनेंस मिनिस्टर तो कंप्लेंट तो रोज आती थी पब्लिक की, तो रेड में हैरान करते हैं, सर्वे में हैरान करते हैं, स्क्रूटनी में ऑफिसर हैरान करता है, काफ़ी अंडर मतलब पैसा अंडर द टेबल चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। तो वीपी सिंह ने उसको पूरा स्टडी किया एंड ही फाउंड आउट कि 95% ऑफ द टैक्स कलेक्शन कम बाई वे ऑफ ए वॉलंटरी कंप्लाइंसेस, सेल्फ असेसमेंट, एडवांस टैक्स, टीडीएस, और भाई सर्वे, सर्च, स्क्रूटनी डिपार्टमेंट को हार्डली यानी 2-4% मिलता है। और जब भी पार्टी उसमें भी 95% लोग अपील में जीत जाते हैं अप टू ट्रिब्यूनल लेवल, तो उसको रिफंड देना पड़ता है, एंड रिफंड गिविंग इज मोर देन द कलेक्शन। तो वन डे ही इशूड वन सर्कुलर कि भाई एक नेक्स्ट, जैसे समझो आज 30 तारीख, आज कितनी तारीख है, 28, 1 जनवरी के बाद नो स्क्रूटनी, नो सर्वे, नो सर्च। 1982 की बात है। जैसे ही वो सर्कुलर आउट हुआ, इनकम टैक्स ऑफिसर इन मुंबई दे वेंट ऑन स्ट्राइक, ये सारा ये सर्वे, सर्च और स्क्रूटनी नहीं होगी तो हमारा घर कैसे चलेगा। तो फिर उन्होंने फिर 5% रखा, फिर धीरे धीरे करके 2% पे किया, और अभी मोदी जी ने तो अभी कर ही दिया फेसलेस के अंदर 400 में से 1 केस स्क्रूटनी में आता है। आपको रीओपनिंग थोड़ी ज़्यादा हो रही है बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये वो सब करके, तो उसके अंदर भी काफ़ी स्मूथ हुआ है। और मैं आपको बताऊंगा बाद में कि अभी डिफरेंस भी बहुत हुआ है, पहले रेड क्या होती थी, अभी क्या है। रिकॉर्ड स्टेटमेंट ऑफ इंडिविजुअल, आपका वो स्टेटमेंट जो होता है अंडर सेक्शन 131 डूइंग द कोर्स ऑफ सर्च, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट विल बी रिलाइड फॉर प्रिपेयरिंग अप्रेजल रिपोर्ट एंड सब्सिक्वेंट असेसमेंट ऑल्सो। पर वो स्टेटमेंट अगर प्रेशर में गलत लिखा गया है, ऑफिसर ही सवाल लिखता है, ऑफिसर ही जवाब लिखता है, एंड ऑफ द डे यू कैन प्रूव के साहब मेरे को तो एकदम प्रेशर में लिखा गया है, मेरा स्टाफ लेडी स्टाफ रात को 2-2 बजे तक ऑफिस में बैठी थी, जिसको घर नहीं जाने दे रहे थे, मेरे स्टाफ को टाइम पे मतलब चाय नहीं मिल रही थी, पूरा डिस्टर्बेंस था, पूरा चारों तरफ से सबके मोबाइल ले लिए, ऐसा करके बाद में रिटेक्ट करो तो भी चलेगा। पर प्रोवाइडेड एनी स्टेटमेंट गिवन सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट फाउंड डूइंग द कोर्स ऑफ सर्च, उस पर थोड़ा डिफिकल्टी होगी। खाली स्टेटमेंट दिया है कि मैंने बोलूँगा मैंने 25 करोड़ रुपये इस साल में कमाया, और मेरा उल्टा सुल्टा पेपर लिखा के ले लेगा, ए ने 10 करोड़ दिया, बी ने 5 करोड़ दिया, 3 करोड़ दिया, और एंड में मेरे पास 25 करोड़ मिला ही नहीं, 25 करोड़ का कैश, ज्वेलरी, अनअकाउंटेड एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं मिला, तो मेरा स्टेटमेंट अजूम होगा कि अंडर प्रेशर लिया गया। पास है रेस्टेंट ऑर्डर, और बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है
कि यू कैन नॉट सीज, मेरे फ्रूट की दुकान है तो आप फ्रूट सीज करके क्या करेंगे, 4 दिन में खराब हो जाएगा। तो वहां पे एक बार वो प्रोहिबिटरी ऑर्डर लगा देगा और आपको इमीडिएटली उसको अप्लाई करना पड़ेगा, ये प्रोहिबिटरी ऑर्डर रिमूव करो, अदर मेरा तो फ्रूट खराब हो जाएगा सब। तो अगर और वो नहीं रिमूव करता है, लगाता है, तो यू हैव राइट टू क्लेम अगेंस्ट द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कि मेरा ये इतना मेरा नुकसान हुआ है बिकॉज ऑफ रेड, और मेरे को आप कंपनसेशन करो। देयर प्रेसिडेंट कि उसको पैसा मिला। एक बार एक आदमी का ऐसा हो गया था, प्रेमनाथ, आपने फिल्म हीरो सुना होगा, उसका बेटा था प्रेम किशन, उसके यहाँ पे रेड आ गया तो उसने बोला भाई देखो मैं अकाउंट का इतना परफेक्ट आदमी नहीं हूँ, मेरा जो भी ज्वेलरी आपको मिला सब अकाउंटेड है और कोई अनअकाउंटेड नहीं है, बट आई कैन नॉट प्रूव टिल आई कॉल माई चार्टर्ड अकाउंटेंट और अंडरस्टैंड फ्रॉम हिम, एंड आप मेरे को अलाउ तो नहीं कर रहे सीईओ को बुलाने का। तो बोले एक काम करो, अभी हम प्रोहिबिटरी ऑर्डर में लगा देते हैं, आपके घर पे ही कपड़ के अंदर सील कर देते हैं, वी विल कम आफ्टर 15 डेज, मीन टाइम यू प्रिपेयर एवरीथिंग एंड विल सॉर्ट इट आउट। 15 दिन उससे वेट किया, सीए से समझ लिया, एवरीथिंग वाज अकाउंटेड, वैल्यूएशन रिपोर्ट, वेल टेस्ट रिटर्न, दिस दैट ऑल, बाप से आया, माँ से आया, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, खरीदा, उसका बिल था, सब कुछ परफेक्ट था। उसे इनकम टैक्स को फ़ोन किया, सर अब आके खोलो इसको। वो 2 महीने तक रोज़ फ़ोन करता है, इनकम टैक्स जवाब नहीं देता है। आज मेरा एयरपोर्ट पे ड्यूटी है, आज मेरा इधर ड्यूटी है, आज मैं ये डाल रहा हूँ, आज कल मैं ये कर रहा हूँ, परसों ये कर रहा हूँ। एक दिन रियली उसके घर पे चोरी हो गई और चोर को तो सील लगती नहीं है, उसे सील तोड़ के चोरी लेके चला गया माल। अभी इनकम टैक्स वाला क्या बोलता है, इसके ऊपर ब्लेम डाल रहा है कि आपने तोड़ के निकाल दिया है। तो हमने गए डीजी के पास, बोला हम 3 महीने से इसको फ़ोन कर रहे हैं, ये मेरा कॉल रिकॉर्ड देखो। और ऑन द कॉल ऑफिसर ने डीजी को क्या इन्फॉर्मेशन दिया, सर मैं रोज इनको फोन करता हूँ, ये रोज बोलता है कल 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 कल। ऑफिसर के उससे बोला तुम्हारा रिकॉर्ड बताओ, तो ऑफिसर के पास देखा नो रिकॉर्ड, उसने फोन किया ही नहीं, ऑन द हम फोन कर रहे थे रोज उसको। और फाइनली चीफ का उसने बोला, डीजी ने, देखो एक काम करो, चोरी तो रियल हुई है, मैंने पुलिस कंप्लेंट की, पुलिस भी आई, उसकी मदर इन लॉ उसके साथ रहती थी, उसको मारपीट भी हुई, उसको खून भी निकला, तो डॉक्टर में हॉस्पिटल में एडमिट भी वो हुई, फैक्ट रियल चोरी हुई थी। तो डीजी ने हमको इनडायरेक्टली ब्लैकमेल नहीं बोलूँगा, एक कॉम्प्रोमाइज ऐसा किया कि भाई एक काम करो, हम आपका ये ज्वेलरी का पैसा देने को जाएंगे, वो तो 20 साल लग जाएगा, और बहुत बड़ी ज्वेलरी नहीं है, 50 लाख 100 करोड़ की ज्वेलरी होगी। तो आपके जो मेन पॉइंट है, जो सर्च में हमको जो मिले हैं आपके बिजनेस के अंदर या इधर या उधर, हम उसको अप्राइजल रिपोर्ट में इग्नोर कर देते हैं, और आगे आप ऑफिसर के पास आप मैनेज कर लेना, तो ये आपका फायदा हो जाएगा, नहीं हमारा टेंशन हो जाएगा। अब क्लाइंट भी व्यापारी आदमी है, उससे बोला केस करेगा, कहाँ से मिलेगा, कहाँ प्रूव होएगा, 20 साल लगेगा, ये कोर्ट में तो आप गए तो आपको मालूम है क्या हाल है। आज अपन अपील फाइल करते हैं नहीं तो 5 साल तक तो उसको ये मालूम पड़ता है कि हाईकोर्ट उसको अपील एडमिट करेगी कि नहीं करेगी। और समझो बाई द वे एडमिट हो गई 5 साल के बाद, 5 साल के अंदर, 4 साल 5 साल बाद, तो उसका असेसमेंट कभी ऑर्डर कभी होएगा 25 साल के बाद। तो आज समझो मैं एक अपील करता हूँ इनकम टैक्स में, इसका रियल डिसीजन आएगा 30 ईयर के बाद। अब 30 ईयर के बाद डिसीजन का क्या मीनिंग लगेगा, जब तो आदमी 90% लोग तो मर जाएंगे उसके पहले। तो वो हिसाब से फिर हमने वो सेट कर लिया। तो एक्चुअली ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि डिपार्टमेंट सील करके जाता है तो आपको देखने का सील साल इंटैक्ट रह रहे, कभी सर्वेंट या कोई आके मिस्टेक से सील को तोड़ नहीं दे रहे, या घर की लेडी है उसको पार्टी में जाने का, ज्वेलरी अंदर पड़ी है, बोले सील तोड़ो, मैं तो पार्टी में जाने वाली हूँ, तो वो सब उतना नहीं कर, तो आपको पूरा केयर करना पड़ेगा। अलाउ चिल्ड्रन टू गो टू स्कूल, हमने क्लिप में देख ही लिया। आप नॉर्मल एक्टिविटी सब कर सकते हैं, बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं, कोई बीमार है तो डॉक्टर को बुला सकते हैं, आप खुद हॉस्पिटल में एडमिट हो सकते हैं। इसके अलावा आपको 2 से 4 दोपहर में रोज सोने का आदत है, यू कैन गो एंड स्लीप देयर। आपको हमेशा 5 बजे मंदिर में जाने का है कृष्ण भगवान के दर्शन करने के लिए, तो आप बोल सकते हैं सब मैं लाइफ में 5 बजे रोज मंदिर जाता हूँ, वो इंस्पेक्टर आपके साथ भेजेगा, ऐसा नहीं कि मंदिर जाके उधर से भाग जावे किधर। तो मंदिर के आपको वो कर सकते हैं। आपका डूली रूटीन आपका जैसा नॉर्मल कोर्स में आप कर सकते हैं। समझो बच्चे की बर्थडे और गेस्ट को ऑलरेडी बुला दिया है, तो डिपार्टमेंट बैठेगा एक कमरे में, आपका बर्थडे मनाओ, लेकिन वो हमेशा टेक रखेगा कोई आदमी कुछ बाहर से गलत चीज़ लेके नहीं आ रहा है, अनअकाउंटेड आइटम, और यहाँ से लेके नहीं जा रहा है। आप पार्टी करो। एक बार ऐसा बात हुआ था, मेरा क्लाइंट था किशोर कुमार भीमजी जवेरी, कनेक्टेड विद त्रिभुवनाथ भीमजी जवेरी। उसके घर पे रेड आया तो 200 गिन्नी, गोल्ड की गिन्नी होती है 8 ग्राम की गिन्नी, वो उसके यहाँ मिली। जब एंड में सर्च करने की बात आई, सीज करने की बात आई, तो उसके अंदर 190 गिनी थी, 200 थी नहीं। तो मेरे क्लाइंट ने बोला भाई सुबह समझा पड़े गिनी है 200 है, गई किधर? तो पहले 10 गिनी का मेरे को अकाउंट बताओ, अदरवाइज आई विल नॉट साइन एनीथिंग। उसके यहाँ पे 2-4 बार रेड आ चुकी थी, तो कॉन्फिडेंस था हर चीज़ का। अदरवाइज पहला आदमी तो जो आँख बीच के साइन करता है कि जो साइन लो यार तुम जाओ इधर से जितना जल्दी, लेकिन जिसके यहाँ पे 2-4 बार रेड आ जाते हैं नहीं, वो बोलता तुम बैठो कोई वादा नहीं है। तो उसके यहाँ पे तो अभी 10 गिनी का लफड़ा हो गया, 5-6 बार गिनी, साल 190 ही होती है। सुबह भी गिनी थे 200 थी बराबर, बात डीजी तक गई। डायरेक्टर जनरल आए साइड के ऊपर जहाँ पे वो रहते थे, तो डायरेक्टर जनरल अभी क्या करने का, या तो डिपार्टमेंट के आदमी ने ली वो गिनी उसमें से कुछ ही नहीं, या एसएससी का आदमी ने ली,
थर्ड आदमी और ये पंचा थे, बाहर का तो आ नहीं आया ही नहीं, उठे गया भी नहीं। तो उन्होंने क्या किया, उनका भगवान का मंदिर था घर के अंदर, तो मंदिर के जाके उधर 190 गिनी एक बार रख दी और उनको बोला कि 1 by 1 ऑल पर्सन विल गो इन दैट रूम, अगर लिया है तो चुपचाप में रख देना। डिपार्टमेंट के सब लोग गए, एसएससी के भी सब लोग गए, वैल्यूएशन ऑफिसर आया, जो वैल्यूएशन जो आया था वैल्यूअर वो भी गया, घर के सर्वेंट भी गए, सब गए। फिर सब पे जाने के बाद काउंट किया तो बराबर 200 थी। तो इसका मतलब किसी ने ली थी। तो जब भी वो ऑफिसर वापस जाता है तो भी आपको बोलता है भी मेरे को चेक करो, मैं कुछ लेके तो नहीं जा रहा हूँ। प्रैक्टिस में आप लोग चेक नहीं करते, वो अलग बात है, लेकिन वो प्रोसीजर पूरा है कि सारा वो लेडी लोग या जेंट्स लोग को एक जेब में डाल देवे या सोने का आइटम डाल देवे तो मालूम ही नहीं पड़े। तो वो भी उसका पूरा ध्यान रखा जाता है। डोंट थ्रेटन, अब्यूज, यूज इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। एक्चुअली लीगली बुला सकते हैं, टैक्स कंसल्टेंट को भी बुला सकते हैं, एडवोकेट को भी बुला सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट को बुला सकते हैं, लेकिन वो बिगनिंग में 2-3 घंटा वो अलाउ नहीं करते हैं कि थोड़ा उनका वो 2-3 घंटा जोश होता है ऑफिसर को, फिर एक बार डाउन हो गया नहीं तो फिर आपका सब चलता है। लेकिन वो टैक्स कंसल्टेंट, सीए, एडवोकेट इंटरफेयर करेगा उसकी एक्टिविटी में, वो अलाउड नहीं है। अभी समझो मेरे को बुलाया, बिल्डर क्या रेट आई, बिल्डर को पूछा भाई फ्लैट क्या भाव बेचते हैं, अब बिल्डर तो बोल नहीं रहा है, मैं बोल रहा हूँ बीच में 4,000 रुपये स्क्वायर फीट। अभी वो 4,000 में बेचता है कि 5,000 में बेचता है कि चेक में बेचता है, कैश में, तो बिल्डर को ज़्यादा मालूम नहीं मेरे से, तो मेरे को बोलेगा आप चुप करके बैठो। जो हाँ अब ये पूछते कि ज्वेलरी अकाउंटेड है कि अनअकाउंटेड है, देन आई कैन ओपन माई वेल टेस्ट रिकॉर्ड, इससे ये वेल टेस्ट का रिटर्न भरा है, ये वैल्यूएशन रिपोर्ट लगी हुई है, इतनी ज्वेलरी अकाउंटेड है। सो इज नॉट इंटरफेयर, ही कैन बी ऑब्जर्वर, लेकिन वो इंटरफेयर करने को आएगा तो फिर उसको बोलेंगे सर आप जाइए इधर से। डोंट थ्रेटन, एब्यूज, मतलब ऑफिसर आके बहुत बार दादागिरी करते हैं, मारपीट करते हैं, वो अलाउड इनकम टैक्स रेट में नहीं है। कस्टम एक्साइज वाले करते हैं तो वो अलग बात है, इनकम टैक्स में अलाउड नहीं है। पर यहाँ पे भी 1-2 लेडी ऑफिसर आई थी बीच में, वो काफ़ी गाली गलौज करती थी, मारपीट करती थी, तो हायर बात ऊपर तक पहुँची और लेडी का ट्रांसफर भी हो गया। तो उसको वार्निंग दी गई कि इनकम टैक्स का रेट है, आपको अनअकाउंटेड इन्वेस्टमेंट मांग देगा। पहले रेट आती थी तो सबसे ज़्यादा हैरान करते थे, डिक्लेयर करो 2 नंबर का पैसा, अरे मिला ही नहीं है कुछ तो क्या डिक्लेयर करूँ। तो बोर्ड का सर्कुलर है, ऑफिसर जो रेड या सर्वे करने को जाएगा, दैट पर्सन कैन नॉट आस्क फॉर द डिक्लेरेशन। हाँ पार्टी खुद बोलता है मेरा अनअकाउंटेड है, मैं 132(4) में डिक्लेयर करने वाला हूँ, तो आपका अलाउ करेगा, लेकिन ऑफिसर कैन नॉट आस्क। प्रैक्टिस में तो यही होता था, वही बोलता है डिक्लेयर करो डिक्लेयर करो डिक्लेयर करो, एक बार डिक्लेयर करो तो हम चले जाएंगे, लेकिन उसने बोला ऑफिसर कैन नॉट आस्क फॉर द डिक्लेरेशन, और थ्रेटनिंग ऑफिसर नहीं दे सकता है। आप इधर इन्फॉर्मेशन लेने को आए ना, और अभी न्यू एक्ट में 2025 में तो ये आइटम ही निकल गई है कि ऑफिसर सिंपली अपना प्रोसीजर काम करके जाने का है, उसको थ्रेटनिंग करना ही नहीं है किसी तरीके से। अगर आदमी को खाने के टाइम दवाई, नॉर्मल लाइफ मैंने आपको बताया, नॉर्मल लाइफ उसकी नॉर्मल चलेगी जैसे नॉर्मल रोज चलती है। मेंटेन ए कूल एंड काम एटमोसफेयर इन द अलर्ट, मारा मारी नहीं, शांति से करने का ऑफिसर लोगों के लिए इंस्ट्रक्शन है। लीव द प्रोमाइसेस ओनली आफ्टर इन्फॉर्मिंग एंड आफ्टर टेकिंग सर्च। अब राइट ऑफ सर्च पर्सन, जिसके ऊपर रेड आया उसका क्या क्या राइट है, इसका अपोजिट उसका हो गया। द असेसी कैन क्लेम टू सी सर्च वारंट ऑथराइजेशन, दे कैन रिफ्यूज। एंड अभी देखो इधर क्या हुआ, एक आदमी है समझो कि उसका नाम अजूम करो कि है रामलाल, एक बिल्डिंग में गए, वारंट है रामलाल के नाम पे। अभी रामलाल उधर बिल्डिंग में 3 रहते हैं, 2 माले पे भी रामलाल रहता है, 10 माले पे भी रामलाल रहता है, 18 माले पे भी रामलाल रहता है, तो साला कौन सा रामलाल पकड़ने का। बहुत बार ऐसा हो गया था, डेट डालनी थी 2 सेकंड फ्लोर रामलाल, डाल दिया 18 फ्लोर रामलाल, तो बाद में ये हुआ कि रेट तो इनवैलिड हुआ, रामलाल पे डालनी नहीं थी, दूसरे रामलाल पे डालनी थी, बट वो हाईकोर्ट का जजमेंट आ गए कि रेट में जो मिला वो तो टैक्स बनना ही है। तो 18 माले वाला रामलाल का बेचारे का 2-4 चीज़ें मिल गई और उसको असेसमेंट में ऐड हो गया, रेट इनवैलिड हुआ, पर उसका फर्क क्या पड़ा, रेट इनवैलिड का मीनिंग नहीं निकला। समझो एक आदमी है रामलाल, और रामलाल के 3 फ्लैट है, 2 माला भी है, 10 माला उसी रामलाल का है, और 18 माला भी है, और वारंट भी लिखा है रामलाल 2 माला, तो वो 2 माला में ही जा सकता है, 18 माला या 10 माला जो भी दूसरा माला उसमें एंट्री नहीं कर सकता है, टिल ही गेट द न्यू वारंट इन नेम ऑफ 18 फ्लोर और 10 फ्लोर। तो अभी समझो, अजूम करो कि ये हॉल के अंदर रेड होता है, अजूम करो अपन सब लोगों पे काम हो जाएगा, सब पे रेड हो गई इनडायरेक्टली, और सबका रीओपन होएगा, 6 साल का असेसमेंट और दुनियादारी चालू हो गई। जबकि रियल में हॉल पे रेड डालने का दूसरी बात के लिए कि दीवारों में कुछ छपाया हुआ है, अब दीवारें तो तोड़ी नहीं, अपने लोगों का जेब निकाला, सबके अकाउंट में कुछ मिल गया और सबका दुनियादारी चालू हो गई। उधर आप 100 करोड़ वाला ग्राउंड नहीं ले सकते, हॉल के अंदर जो पर्टिकुलर वारंट आ गया,
डिपार्टमेंट वेरीफाई करेगा कि हॉल में डालने से 100 करोड़ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और रॉन्ग कैलकुलेशन उसका हो गया, जैसे मैंने बताया भाईंदर पार्टी का। एक बार रेड आ गया, वो 100 करोड़ में आया कि 100 रुपए में आया, फिर अंदर आपका सब प्रोसीजर एक से चालू हो गया। देखो ना, अनअकाउंटेड है, वो असेसमेंट का पार्ट है। रेट डालना है वो अलग डिपार्टमेंट है, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का काम। सॉरी, नहीं वो तो पार्टी अपील करेगा नहीं। अगर मेरे पे रेड आया, समझो मेरे बिल्डिंग में विमल पुनविया करके एक आदमी 21 माले में रहता है, उस पर डायमंड का कारोबार है, बड़ा आदमी है। अब मैं विमल पुनविया 3 माले में रहता हूँ, जो मैं सीए का प्रैक्टिस करता हूँ। अभी रेट डालना उस विमल पुनविया पे, लेकिन बिल्डिंग में समझो मैं सेक्रेटरी हूँ, मैं ज़्यादा फेमस हूँ, तो मेरे यहाँ पे आ गए मेहमान, और मेरे यहाँ पे क्लाइंट का कुछ मिल गया, मसला मिल गया, तो मेरे पे रेट तो आ गई। और मैं क्या करूँगा, बाद में चैलेंज करूँगा, सीए हूँ तो जाऊँगा इनकम टैक्स में क्या है, और मेरे को इनडायरेक्टली मालूम पड़ा कि रेट तो उस पर आने वाली थी, मिस्टेक से मेरे पे आ गई। मैं हाई कोर्ट में जाऊँगा तो डिपार्टमेंट से रेट इज इनवैलिड, पर जो पैसा मिल गया मेरे तो 2 नंबर का, वो तो मेरे अकाउंट फॉर हो गया, वो तो मेरे को टैक्स लगना ही लगना है, तो वो प्रेसिडेंट है। ऐसे हाँ क्या हुआ, हासिल हुआ नहीं, मेरे यहाँ पे जो 2 नंबर का पैसा मिला उसको डिपार्टमेंट को टैक्स मिल गया। नहीं मैं नहीं समझा सर, नहीं क्या मतलब, मैं समझा नहीं। हाँ अब कुछ नहीं है, वो डिपार्टमेंट का गलती का कोई पेनल्टी नहीं है। अकाउंट वो अभी नए 2025 में आ गया है डिपार्टमेंट। अभी आपने बात छोड़ा, मेरे एक असेसमेंट हुआ था 12-15 साल पहले, मेरे क्लाइंट की रिटर्न इनकम थी 6 करोड़ रुपया, असेसमेंट हुआ 60 करोड़ रुपया, 29 पॉइंट पे उसने ऐड किया ऑफिसर ने, बहुत अच्छा। एंड दैट ऑर्डर वाज सर्कुलेटेड टू ऑल द इनकम टैक्स ऑफिसर कि दिस इज द मॉडल ऑर्डर, ऐसा ऑर्डर होना चाहिए, और सब ऑफिसरों के सामने उस ऑफिसर को फेलिसिटेट किया। और ये वो ऑर्डर को मतलब बड़ा यूनिक ऑर्डर, जैसा गीता महाभारत कैसा होता है वैसा गिना गया। हमने सीआईटी बिल के बाद अपील फाइल किया, सीआईटी बिल डिलीटेड ऑल 29 एडिशन, एंड डिपार्टमेंट हैव नॉट फाइल अपील बिफोर द ट्रिब्यूनल। लेकिन ऑफिसर का तो कुछ ही नहीं हुआ, उसका तो वो टाइम प्रमोशन और मिल गया उल्टा। तो ये तो भी है भाई, जिस हिंदुस्तान में रहता है तो हिंदुस्तान का सिस्टम यही है। अभी आप बोलो आज मैं हाईकोर्ट में अपील फाइल करूं कोई पॉइंट पे, और मेरे को 5 साल में ये मालूम पड़ेगा कि मेरी अपील एडमिट हो रही है कि नहीं हो रही है, और उसके बाद मेरा डिसीजन आएगा राइट और रॉन्ग 25 साल के, उसके 25 साल के बाद क्या जस्टिस हुआ। 30 साल के में तो डिपार्टमेंट मेरा खून पी के पैसा वसूल कर लेगा सब, तो वो तो भी प्रोसीजर है, क्या करेंगे। असेसी कैन रिफ्यूज टू सर्च अंटिल 2 इंडिपेंडेंट पंचायत, आने के बाद 2 इंडिपेंडेंट पंच आपको बुलाना पड़ेगा। अगर क्लाइंट बोलता है मैं नहीं बुलाऊंगा तो डिपार्टमेंट बुलाएगा 2 आदमी, पर वो 2 आदमी नहीं तो डिपार्टमेंट के से होंगे, नहीं एससी से होंगे, दे विल बी इंडिपेंडेंट। और टुमारो इफ एनी डिस्प्यूट टेक प्लेस, पंचा जो बोलेगा वो पंच परमेश्वर है, दैट विल बी एक्सेप्टेड। पंचा बोलेगा डिपार्टमेंट ने दादागिरी किया तो यस किया, पंचा बोलेगा नहीं किया तो नहीं किया। द एसएससी हैज अ राइट टू फीमेल सर्च। अभी मेरे घर में फीमेल का सर्च करने का है, उनको उनके जेब में कुछ पैसे छुपा के रखा है, तो ऑफिसर के साथ जो लेडी ऑफिसर आएगी वही कर सकती है, जेंट आदमी नहीं कर सकता है। स्टेटमेंट रिकॉर्डेड कैन बी वेरीफाइड बाय द एसएससी बिफोर साइनिंग। आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है, दैट इज द मेन इंस्ट्रूमेंट एक्चुअली। आपका जो असेसमेंट होगा सर्च के बाद वो मेन आइटम गिनी जाएगी, तो आपको पूरा हक है, आधा घंटा लगे कि 2 घंटा लगे, पूरा उसको पढ़ने का आपका पूरा हक है। वंस यू आर सेटिस्फाइड कि जो आपने बहुत बार क्या होता है डिपार्टमेंट ही सवाल लिखता है वही जवाब लिखता है, तो आपको पूरा हक है वो चेंज कराने का, एंड उसके बाद ही आपको साइन करने का है। वंस यू साइन इट मीन्स फर्स्ट स्टेज इट विल बी टेकन एज वॉलंटरीली टिल यू मेक ए रिट्रैक्शन एंड क्लेम समथिंग एल्स। एसएससी कैन कंटिन्यू नॉर्मल एक्टिविटी हाउएवर इज टू नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द सर्च। अभी आप बोलो मैं तो सोने को जाता हूँ, मैं 2 दिन तक सोते रहूँगा, और तो वो अलाउड नहीं है। मैं मंदिर जाता हूँ, मैं शाम को 11 बजे मंदिर बंद होगा तो ही मैं निकलूंगा, वो इतना नहीं है, रीजनेबल आप सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे और बताता हूँ, मेरा क्लाइंट था बहुत बड़ा बिल्डर है, उसके यहाँ पे रेड आया तो क्लाइंट बोलता है मेरे को बाथरूम जाने का है, तो क्लाइंट बाथरूम में गया, और उसके जेब के अंदर बड़ी बड़ी डायरियाँ फाइलें उस स्टाइल से डाल दी कि कोई जमाने में वो पहले बहुत बड़ा स्मगलर था, तो उसको सब आट आती थी। बाथरूम में गया, 2 घंटा बाथरूम से निकले ही नहीं वापस, और इंस्पेक्टर को साथ में भेजा, बाहर खड़ा रहा, तो बोला भैया बाहर तो आओ। बोला साहब मैं क्या करूँ, मैं बाथरूम में जा रहा हूँ तो मेरे को टाइम तो लगने वाला है। अरे कितना टाइम लगेगा, 2 घंटे से तुम बाहर नहीं आया। तो मीन टाइम उसे सब पेपर डाल दिया, फ्लश में कर दिया हिसाब किताब। तो उसके बाद वापस आया
तो उससे डिपार्टमेंट ने बोला कि आपने तो सब पेपर जेब भर के गए थे, अभी जेब तो खाली है, आपको कुछ है ही नहीं इसके अंदर, और साथ में बैग भी लेके गई थी। तो बोला तो बैग, तो उसने बोला मेरा बैग तो है अंदर पड़ा है, मैं लेके आया हूँ, खाली है। बोला बैग में आप गए थे तो बैग भरा हुआ था। बोला किसने देखा भरा हुआ था, खाली था। तो डिपार्टमेंट उसका कुछ भी नहीं कर सका। एविडेंस क्या है डिपार्टमेंट के पास? उसके बाद में अभी तो रेड 2-3 दिन में खत्म हो जाता है एक्चुअली। ओल्डन डेज इफ यू गो, तिरुमुदास बीबीजे पे रेड आया था, आई वाज हैंडलिंग दैट, 30 डेज लगा था सर्च में। जमना दास चौकसी को तो 45 डेज लगा था, और 45 डेज तक बैठे हैं, धंधा आपका बंद है, अंदर रंगती चालू है, वो अभी नहीं है। अभी मैक्सिमम 2-3 दिन में खत्म हो जाता है, बड़े रेड में, छोटे रेड 1 दिन में खत्म हो जाता है। तो वो मेरा क्लाइंट जो बिल्डर था, उन्होंने आधा ट्रक लोड ऑफ द पेपर अलग कर दिया कि ये हमको सीज करने का है, जिसके अंदर एग्रीमेंट, सेल एग्रीमेंट, बैंक स्टेटमेंट, बुक्स ऑफ अकाउंट, एवरीथिंग वाज देयर। और क्लाइंट को बोला कि आप हमको लोहे के बड़े बड़े ट्रक दो 15, मैं उसके अंदर हम ये लेके जाएंगे। क्लाइंट ने बोला भैया आप आए रेट डालने के लिए, आपको लेके जाने का, मैं काहे के लिए ट्रक दूँ, आप मंगाओ अपना मंगाना है तो बोला हमारा बजट में तो 7 रुपया है एक पेटी का ऊपर। तो 7 रुपये में उसने गेहूँ की जो बोरी होती है, खाली बोरी, वो सब मंगाई, जूट की बोरियाँ, और सब पेपर उसमें डंप कर दिया और उधर से ऊपर से बांध दिया। और क्लाइंट को बोला साइन करो। उसने बोला सर मेरे 25 साल की कमाई के ये पेपर है, एग्रीमेंट है, परचेज एग्रीमेंट, एक एक एग्रीमेंट मेरा 100 करोड़ के ऊपर का है, सेल एग्रीमेंट है जो मेरे को फ्लैट अंडर कंस्ट्रक्शन है, पार्टी को जवाब देना है। एज ऑन टुडे मेरा 150 तो केसेस चल रहे हैं, एंड आई विल नीड ऑल दीज डॉक्यूमेंट। जिस तरीके से आप लेके जा रहे हैं तो मेरे को कभी कॉपी लेना मैं कैसा लूंगा, कहाँ पे ढूंढूंगा, कौन सा पेपर किधर है? तो बोला क्या करने का? बोला साहब पहले आप एक एक बोरी के अंदर क्या क्या डाला उसका इन्वेंट्री बनाओ, एक एक पेज नंबर लिखो, ये एग्रीमेंट, ये पेज है, ये एग्रीमेंट, ये पार्टी के साथ ये एग्रीमेंट है, ये परचेज एग्रीमेंट है या सेल एग्रीमेंट है, कि बैंक स्टेटमेंट है, कि लेजर है, कि कैश बुक है, कि जर्नल है, क्या है? बोला ऐसा हम करने को जाएगा तो 1 महीना लग जाएगा। बोला आप 2 महीना लगाओ ना, बैठो आराम से, मैं आपको एक कमरा दे देता हूँ, 2 स्टाफ देता हूँ, खाने पीना आपका चालू है। बिलीव मी इट टुक 15 डेज। उन्होंने सब पेपर सॉर्ट आउट किया, लिस्ट बनाई, एक कॉपी क्लाइंट को दी, एक वो बोरी के ऊपर लगाई, एक उनके फाइल में रखी। अदरवाइज मतलब मेरे को कभी कॉपी से कैसे ढूंढेगा? सो ये आपका राइट है, उसको आप कहाँ पे लगा सकते हैं। ड्यूटी ऑफ द सर्च पर्सन, मेरी ड्यूटी क्या है? अलाउ फ्री एंड अनहिंड्रेंस एंट्री, सर्च बॉडी को आपको अंदर घर में बुलाने का आपकी ड्यूटी है पूरा, घर के बाहर आप रोक नहीं सकते उसको। सी द वारंट, वारंट बराबर है कि नहीं है, आपका फ्लोर नंबर लिखा है कि नहीं लिखा है। मेरा एक क्लाइंट था, उसके यहाँ पे 4 फ्लैट है उस बिल्डिंग में, वारंट था खाली 10th फ्लोर का, उसके 7 वाले में भी था, 15 में भी था, 22 में भी था, चारों भाई। किचन एक था, 4 भाई थे, अलग अलग रहते थे। तो जब तक वारंट नहीं लेके आए दूसरे 3 फ्लैट का, हमने उसको एंट्री नहीं दिया। बोला आप अलाउ नहीं कर सकते, जिस वारंट में जो फ्लैट लिखा है उधर ही आप कर सकते हैं। और उसने मेन टाइम, होशियार आदमी था, बिल्डर वैसे भी होशियार ही होते हैं, खिड़की में से उसको जो नीचे भेजने का था वो सब सामान भेज दिया। हालांकि ऑफिसर लोग खड़े थे साइड में, उनको समझ ही नहीं आया किधर से क्या आ रहा है। तो सो वो दैट इज योर राइट कि भाई दूसरी जगह अलाउ नहीं करने का जब तक वारंट नहीं आता है। आंसर टू द क्वेश्चन टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज। अभी कोई चीज़ आपको जबरदस्ती आंसर देने का भी नहीं है, मालूम है दे दो, आपको लगता है ये देने से तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, लो साहब अभी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मैं आपको बाद में 7 दिन में अकाउंटेंट को सब सलाह करके आपको जवाब दूंगा। दैट इज योर राइट, यू कैन से दैट। साइन द स्टेटमेंट रिकॉर्डेड, लिस्ट ऑफ द इन्वेंट्री सीज, पंचनामा, सब पेपर अपन को साइन करने का है। इंश्योर दैट पर्सन इज मेंटेन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द सर्च, इंश्योर दैट पीस इज मेंटेन। मतलब बहुत बार लोग आते हैं ना, रेड आया रोना चालू कर देते हैं आदमी, पागल हो गया वैसा एक्टिविटी करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। और पैसे वाला आदमी तो नॉर्मली तो क्या होता है, वो तो रात को सोता है तो रेडी होकर सोता है कि कल सुबह अगर मेहमान आ गए तो मेरा क्या अनअकाउंटेड और क्या अकाउंटेड है। मैं इसके लिए एक ऐसा बताता हूँ, बहुत सालों पहले की बात है, मे बी 40 साल पहले की। मेरा क्लाइंट था, लिमिटेड प्रैक्टिस होती है अपनी सीए की बिगनी में, ये किशोर कुमार भिंजी जी वही करके मेरा क्लाइंट था। और वो आता ही रात को ऑफिस में 9:30-10 के बाद, और रात को 2 बजे तक मैं उसके साथ बैठा रहता था। अकाउंटेंट समझो छुट्टी पे गया, अकाउंटेंट ने गुस्सा होकर चला गया कि इनकम टैक्स वाला इतना डिटेल मांग रहा है, तो कैश बुक को लेके मेरे ऑफिस में आता था 9 बजे, विमल भाई अकाउंटेंट तो चला गया, अपन बैठ के बनाते हैं। और रात को 1 बजे मेरे घर पे छोड़ता था, तो चल रहा था, अपन भी सोचते थे अच्छा क्लाइंट है, लिमिटेड क्लाइंट है, ये चला गया तो और पीछे क्या बचेगा। तो वो टाइम पे एक वो क्लाइंट ने मेरे को रात को 2 बजे फ़ोन किया कि विमल भाई आप किधर है? मतलब 2 बजे तो घर में ही होगा ना, और किधर होएगा। तो मेरे बोला मैं आता हूँ 2 मिनट में, और मैं बोलूँ कि भाई क्यों आ रहे हैं, उसके पहले फ़ोन रख दिया। मेरे घर पे आया, 2 ब्रीफ केस लेके आया, बोला विमल भाई ये मैं रख के जाता हूँ। बोला क्यों? बोला इसके अंदर 20 लाख रुपया है। अब वो जमाने में 20 लाख में आज का 20 करोड़ हो गया। तो मैं कुछ बोल लूँ कि भाई काय का है, क्या करने का है, क्यों रख रहा है, उसके पहले चला गया वो। मैंने वो बैग लेके पलंग के नीचे रख दिया। बिलीव मी फर्स्ट टाइम ऐसा था, मेरे को रात को नींद ही नहीं आ गई।
मैं आराम से सोता था, 8 बजे मेरी वाइफ उठाती थी, चाय बन गया है, ऑफिस जाने का है तो रेडी हो जाओगे। अब वो दिन मेरे को नींद नहीं आया, 2 बजा 3 बजा, कभी मैं हॉल में घूम रहा हूँ, कभी किचन में घूम रहा हूँ, कभी क्या कर रहा हूँ। मेरी वाइफ बोलते क्या हो गया, तबीयत ठीक है? मैं बोला तबीयत तो ठीक है। अब मेरे को डर ये लगता है भाई को मैं बोलूँगा कि इसे 20 लाख पड़ा है, वो नेबर को बोलेगी कि साली प्रॉब्लम नहीं होने वाली हो जाएगी, और मैं नहीं बोलूँ तो मेरा मन मान ही नहीं रहा है। अभी सुबह 5 बजा, डोरबेल बजी, मैं बोला आया, गया तो दूध वाला देखा, फिर अखबार वाला आया, सब्जी वाला आया, फ्रूट वाला आया, धोबी। अब मैं देखा साला सुबह सुबह 10 आदमी तो घर में आते हैं अपने इधर, जो मेरे को मालूम नहीं था कौन कौन घर में आता है। 8 बजा, मेरी भाई बोलती स्नान नहीं करने का है क्या? मैं स्नान किया, रेडी हुआ, 10 बजा। मैं बोला क्या करूं मैं ऑफिस नहीं जाऊं तो भी लफड़ा है, घर के अंदर प्रॉब्लम होगी। ये बोला कि आज क्या हो गया, क्यों नहीं गए, ये वो दुनिया भर का लफड़ा। और लेडीज का तो आपको मालूम है, अगर जाऊं और पीछे से को लेके चला गया तो लफड़ा दूसरा। फिर भी हिम्मत करके मैं ऑफिस गया। ऑफिस में मैं इनकम टैक्स का एडजॉब मैंने अप्लाई किया। मैं बोला यार मेरा तो मन ही नहीं लग रहा है, कभी अपने 20,000 भी एक साथ नहीं देखा और सडनली 20 लाख रुपया। और बार बार मेरे को पलंग का नीचे वाला सीन ही दिमाग में आता है। तो फिर 2 बजे क्लाइंट का फोन आया कि विपुल भाई किधर है? मैं बोला ऑफिस में है। तो बोला मैं आता हूँ, मैं वापस ले लेता हूँ। मैं बोला आजा भाई, मेरी पूरी रात नींद नहीं आई आज। तो बहुत बार क्या होता है कि व्यापारी लोगों को जब भी सुबह सुबह घंटी बजती है नहीं तो ही टेंशन आता है। अच्छा, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो आदमी बिजनेस करता है उसको तो दिमाग में कैलकुलेशन है क्या बोलने का। और जैसे एक बार अब क्लाइंट है, उससे 4 भाई है, 3 भाई छोटे बिजनेस संभालते हैं, सेल, परचेज, फाइनेंस, ये सब। बड़ा आदमी खाली एक ही काम करता है, किसका डेथ हो गया तो उसके घर पे जाता है, किसकी शादी है तो उसके यहाँ जाता है, और यही ध्यान रखता है किसका बच्चा कितने साल का हुआ, किसकी शादी कहाँ करने की है, उसका वही दिमाग रहता है। रेड आया, उसको हार्ट अटैक आ गया, उसका लेना देना ही नहीं कोई बिजनेस से, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। तो बहुत बार क्या होता है कि आदमी को राइट और ड्यूटी मालूम नहीं होता तो ऐसे ही टेंशन में आ जाता है। 2 नंबर वाला तो एक और एग्जाम्पल बता दो, पारसी आदमी था, उसका शेयर मार्केट का बड़ा कारोबार था। कोई जमाना में उसका इंडिया, पाकिस्तान, भूटान, चाइना, अफगानिस्तान सब जगह ब्रांचेस भी थी, बट धीरे धीरे स्लो होते गया। 1986 में और वो लेडी एक मालिक थी, उसमें वर्किंग पार्टनर होते थे, मेन पार्टनर पाकिस्तान का था, बाकी वर्किंग पार्टनर थे सब। एक दिन मेन पार्टनर का डेथ हो गया तो पाकिस्तान में तो क्या मारामारी ज़्यादा चलती है, तो जो लोग उसमें पैसा मांगते थे दे ऑल केम, मोर देन 5,000 पर्सन, और जो लोगों को उसको देने का था वो सब डिसअपीयर हो गए। मुस्लिम कंट्री है, कोई जवाब देने वाला नहीं था। तो वो लेडी को ऐसा लगा कि अब इसको ये मार डालेंगे। सी वाज द वाइफ ऑफ दी दैट पार्टनर, बाकी वर्किंग पार्टनर थे। तो वो लेडी का भुट्टो, जुल्फिकार भुट्टो, जो अभी भुट्टो है उसका दादा, नाना, या वो उसका दोनों साथ में पढ़ते थे तो उनकी फ्रेंडशिप थी। तो उसने भुट्टो को फ़ोन किया, भुट्टो समझ गया, उसने बोला पीछे के दरवाजे से, उसका बंगला भुट्टो को मालूम था कहाँ पे क्या है, कि मेरा गाड़ी आएगी आर्मी की, आप पीछे की दरवाजे से निकलो, गाड़ी में बैठो, आपको सीधा फ्लाइट लेके लंदन लेके चले जाएगा, अदर इधर तो लोग मार डालेंगे। वो लंदन चली गई, लंदन में भुट्टो के बंगलों में रही। देन सी फाइनली केम टू इंडिया। ये लेडी की 4थी शादी थी, और ये जो इसका वर्किंग पार्टनर इंडिया में था उसका भी 4थी शादी था। पहले तीनों शादी से तीनों को एक एक बच्चा था, और कोई इंसिडेंट देखो, तीनों लेडी के 3 बच्चे थे, एक सरदार जी, एक सिंधी, एक पंजाबी, और तीनों लोग सीए, इंग्लैंड से सीए किए हुए। आदमी के भी 3 बच्चे थे, एक अमेरिकन था, एक जर्मनी था, एक ऑस्ट्रेलिया वगैरह का था, और वो भी कोई लड़का था, कोई लड़की थी, वो भी तीनों चार्टर्ड अकाउंटेंट, उन्होंने भी इंग्लैंड से किया। 6 के 6 बच्चे सीए। ये 4थी शादी से कोई शादीबाजी नहीं हुई थी, पर उनका एग्रीमेंट था बिजनेस में, हस्बैंड विल बी वर्किंग पार्टनर एंड वाइफ विल बी रियल ओनर। लॉस होगा हस्बैंड को संभालने का है, प्रॉफिट हुआ तो 25% लेडी को देने का है, और पूरा क्लियर कट एग्रीमेंट थे, फर्स्ट गरगात एंड कंपनी सॉलिसिटर का बनाया हुआ। एक दिन लेडी ऑफिस में आई तो देखा बूमा बूम हो रहा है ऑफिस के अंदर, शेयर मार्केट का बिजनेस है, रॉन्ग डिलीवरी, बैड डिलीवरी, ये डिलीवरी, वो डिलीवरी, और लेडी का दिमाग अपसेट हो गया। तो उसने क्या बोला, अरे स्टाफ से भी वो दुखी थी, टाइम पे कोई आता नहीं है, टाइम के पहले चले जाता है, और बिगर बोले नहीं आते, और वो थी फॉरेनर लेडी, तो वो पाकिस्तान की थी, आदमी इंग्लैंड का था, पर थोड़ा उनको था कि डिसिप्लिन होना चाहिए। तो वन डे सी डिसाइडेड 12 o'clock कि टुमारो ऑनवर्ड्स देयर विल बी नो ट्रांजेक्शन, बिजनेस क्लोज्ड, सबका ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड, ये वो सब भर दो। हो गया इफेक्टिव, सबको पेमेंट कर दिया, सब बिजनेस क्लोज, नो ट्रांजेक्शन। जुड़ने वालों को जिसको पैसा देना था उसको दे दो, लेने वाला आता रहेगा, और चैप्टर क्लोज्ड। उसके यहाँ पे अकाउंटेंट था करंजिया, जो उसका अकाउंट लिखता था, कंपनी का तो लिखता था, उसको प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी जो मिलना सब मिलता था, प्लस ही यूज्ड टू राइट अकाउंट फॉर द इंडिविजुअल पर्सनल अकाउंट ऑल्सो। तो अभी तो बिजनेस बंद हो गया, तो करंजिया उसके घर पे आया कि भाई मेरे को आप कुछ दो, ऑफिस में तो ग्रेच्युटी वगैरह सब दे दिया आपने। तो उन्होंने उस जमाने में 10,000 रुपये का चेक दिया उसको। करंजिया बोलता है मेरे को 50,000 चाहिए। बोले वी आर रिटायर्ड, वी आर नॉट सोल्ड द बिजनेस, वी हैव पेड द ग्रेच्युटी एंड प्रोविडेंट फंड, वी कांट अफोर्ड। मामला बड़ा, तो करंजिया ने बोला अभी मैं देखो तुम्हारे पे रेट लेके आएगा पक्का। वो खबर गई लेडी और हस्बैंड दोनों,
मेरे को फ़ोन किया रात को 7 बजे, विमल कम, समथिंग वेरी अर्जेंट। मैं गया तो मेरे को बोलती करंजिया केम एंड ही सेड लाइक दिस, वी विल बी रेडेड नाउ। मैंने बोला भाई देखो तुम्हारे घर पर अनअकाउंटेड कैश है क्या? बोला कुछ नहीं है, हम तो एवरी 15 डेज में 50,000 रुपये बैंक से ड्रॉ करते हैं। अनअकाउंटेड ज्वेलरी, और लेडी बेडरूम में जाके ज्वेलरी लेके आई, 50 ग्राम भी गोल्ड नहीं था उसके पास। अनअकाउंटेड इन्वेस्टमेंट, नो, ऑल चेक्स आर रिजर्व बैंक के साथ चेक के ट्रांजेक्शन है। अनअकाउंटेड एक्सपेंडिचर, नो, बच्चा है ही नहीं कोई, वो बच्चे से तो वो टच में ही नहीं है, पहले वाले बच्चे तो अपना काम कर रहे हैं। तो मैं बोला तुम्हारे घर पे इनकम टैक्स रेड आके करेगा क्या? बोला आ जाएगा तो क्या करने का? मेरा आ जाएगा तो मेरे को फ़ोन करना, मैं आ जाऊँगा, मैं संभाल लूँगा। सेकंड डे 10 बजे फ़ोन आया, विमल भाई अभी तक तो आया नहीं है। मैंने उसको बोल दिया था मिस्टेक से 7 बजे तक आएगा तो मैं बोला नहीं आया तो अच्छी बात है ना। शाम को वापस फ़ोन किया, आज भी नहीं आया। अरे मैं बोला नहीं आया तो करने का क्या है, तुम्हारे पास है क्या? तो बोले आएगा इधर। वो 3-4 बार मेरे रोज दिल्ली में 6 बार फ़ोन करे, रोज मेरे को घर पे बुलावे, वापस रोज सेम चीज़ मैं उसको रिपीट करूँ। एक दिन बोला यार अभी तो साला इनकम टैक्स आ जावे तो हम जान छूटे, रोज का टेंशन तो खत्म हो गए। तो जब तक वेन टिल यू डोंट नो व्हाट आर द राइट, सब हवा में ही चलता रहता है। कमेंसमेंट ऑफ द सर्च, सी द वारंट, विद प्रॉपर वारंट, आपका नेम एड्रेस जो मैंने पहले बोला ऑलरेडी वो होना चाहिए, साइन होना चाहिए। वारंट आपको दिखाएगा, पूरा उसको पढ़ो 3 बार कि दैट इज द इंस्ट्रूमेंट पॉइंट। अरे एक बार वारंट आपको दिखा दिया और बाद में आप वारंट को चैलेंज करेंगे कभी भी, आप फोटो तो ले नहीं सकते। आपका आईटीओ, कमिश्नर, ट्रिब्यूनल, किसी को भी पावर नहीं है वारंट बुलाने का। और वारंट के पीछे एक बैकग्राउंड होता है, सर्च नोट, ये सर्च डाला क्यों गया है, इन्फॉर्मेशन क्या आई थी, क्या क्या पेपर, वो भी किसी को पावर नहीं है। ओनली हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट कॉल फॉर दैट फोल्डर, कॉन्फिडेंशियल फोल्डर, और वो भी देख के वापस डिपार्टमेंट को देना पड़ता है। तो वारंट आपको जो देखने का देख लो, इसके बाद आपको देखने को मिलने वाला नहीं है वापस, जब तक सेकंड रीड नहीं आएगी। वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ ईच मेंबर, उसको वेरीफाई कर लो, जो चेक करना है। Carry out the personal search of all the members of the search party. Insist upon the personal search of the ladies by the ladies only, especially after the TELCA and Supreme Court judgment. Call independent, respectable to witnesses. मैंने आपको बोला 2 witness को बुलाने का, independent. Precaution to be taken by reference to the search warrant. There may be situation where the same premises 2 or more person, मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया 2 आदमी रहते हो तो जहाँ पे वारंट पे फ्लैट नंबर है उधर ही आप एंट्री हो सकता है। There may be situation search warrant is issued in the name of particular person where person has destroyed। अब बहुत बार रेड आके डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन है ना कि सोफे में छुपा के रखा है, कबर्ड के अंदर छुपा के रखा है। आपने 2 पिक्चर देखी होगी 26 मेरे ख्याल से, एक तो पिक्चर है रेड और एक है 26 या 29 26 तो हाँ स्पेशल 26 आज वो तिमुरदास बिमजी जवेरी ओपेरा उस पर रेड हुई थी और बोगस ऑफिसर आके, एक ऑफिसर नहीं 50 ऑफिसर की टीम आके उसका सब ज्वेलरी लेके चले गए, बाद में मालूम है सब बोगस थे। तो ये वेरीफाई करना भी बहुत जरूरी है। बॉम्बे में तो कम होता है, पर मुझे याद है एक बार थाना से कुछ 1 किलोमीटर गांव है, वहाँ पे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अलॉन्ग विद 2 आर्टिकल क्लर्क वो गया सर्वे करने और उसने सर्वे किया तो, और लकीली जहाँ पे सर्वे किया उसका बेनोई इनकम टैक्स कमिश्नर था थाना का ही। तो उसने अपने बेनोई को फ़ोन किया कि भाई ये तो मेहमान आ गए। बोला कौन आया? बोला से मिस्टर सो एक्स आया। बोला एक्स तो मेरे सामने बैठा है, किधर से आ गया तुम्हारे इधर? तो बोला उसको चाय पानी पिलाओ, रखो थोड़ा सस्पेंस में हमारे। तो उसको सीए को चाय पिलाया, आर्टिकल को चाय पिलाया, आर्टिकल को भी ट्रेन करके रखा था। फिर सडनली कमिश्नर गया उधर अलॉन्ग विद 2 एडिशनल कमिश्नर ज्वाइन करके, देखा चला सीए कर रहा है सर्वे इधर तो, और आर्टिकल कलर को लेके आया साथ में। फिर बाद में थोड़ा बहुत धमाल मची और बात खत्म हो गई। सो बेसिकली आपको ये जानना तो बहुत जरूरी है कि बहुत सारे ऑफिसर रिटायर हो जाते हैं, आईडी कार्ड अभी तक भी है। ये बॉम्बे में कम होगा, आप जाओ विदर्भा एरिया में समझो कोल्हापुर, सोलापुर, अमरावती, अकोला, उधर बोगस सर्वे भी बहुत होती है। तो वो आपको जानना बहुत जरूरी है कि राइट आदमी तो आया है क्या, नहीं तो स्पेशल 26 से जैसे साला ज्वेलरी लेके चला गया पूरा। वुमन कैन बी चेक्ड ओनली बाई लेडी मेंबर, चिल्ड्रंस कैन गो टू स्कूल, वो मैं बता ही दिया आपको। इन केस ऑफ एनी हेल्थ, आने के बाद किसी का तबियत खराब हो गया तो आप उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर सकते हैं, और एडमिट करने के बाद उसका जेब चेक करेगा, वो लेके तो नहीं जा रहा है कुछ। इसके अलावा पीस इज टू बी मेंटेन, कभी मारामारी चांसेस नहीं होना चाहिए, शांति से काम होना चाहिए, भले 2 घंटा ज़्यादा लगे। इनकम टैक्स को भी इंस्ट्रक्शन है और एससीसी को भी केयर करने का है। प्रिकॉशन टू बी टेकन वाइल एक्सपेंडिंग द ज्वेलरी। अभी ज्वेलरी में क्या होता है, ये काय के लिए हुआ पीस का, एक लेडी प्रेग्नेंट थी चर्च गेट के उधर, इनकम टैक्स का रेड आया, उसको बोला भाई ये लेडी को हॉस्पिटल में एडमिट करने दो, उसको बच्चा होने वाला है और आज ड्यू डेट है। ऑफिसर बोलता नहीं, तो घर पे ही लेडी ने बच्चा दिया। और फाइनली मैटर वेंट टू प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, प्राइम मिनिस्टर सॉरी दैट ही वाज द फाइनेंस मिनिस्टर, 92-94 की बात है।
पहले क्या करते थे रेड वाले, लेडी का मंगलसूत्र, बेंगल, वो भी खुला खुला के सीज करके जाते थे। फिर मनमोहन सिंह ने एक सर्कुलर निकाला, सर्कुलर नंबर 1916, 18 फरवरी 1994। वो क्या बोल रहा है, एक मैरिड वुमन के पास में 500 ग्राम तक गोल्ड ऑर्नामेंट है, 50 तोला रफली, अनमेरिड गर्ल के पास 250 ग्राम गोल्ड ऑर्नामेंट है, और मेल के पास 100 ग्राम गोल्ड ऑर्नामेंट है, आप सवाल जवाब नहीं कर सकते, वो उसका एक्सेप्टेड है। समझो एक फैमिली है, अजूम करो मेरे घर पे रेड आई, मेरी मदर है, मेरी वाइफ है, मेरी बेटी है, ऑल मैरिड, तो 1500 ग्राम उसका हो गया, मेरा बेटा 100 ग्राम, ग्रैंडसन 100 ग्राम, मेरा 100 ग्राम, तो 1800 ग्राम तक गोल्ड मेरे घर में मिलता है। भले मेरी डॉटर इन लॉ के रूम में मिले, एक मेरी वाइफ के रूम में मिले, एक मेरी डॉटर के रूम में मिले, जब तक आप इनकम टैक्स वाला उसको 1 ग्राम भी लेके जा नहीं सकता है। डायमंड ज्वेलरी, यस यू टू एक्सप्लेन। अच्छा ये 1800 तो क्या हो गया, 500 ग्राम, 250 ग्राम, 100 ग्राम तो मेरा ऑफिस का प्यून है, काम करता है, उसका 25,000 रुपये सैलरी है, उसके घर पे मिला तो भी एक्सेप्टेड है। तो मेरे घर पे तो 500 के बदले 1500 रह सकता है, ग्वालियर महाराजा के इधर तो 1500 की जगह पे 15 किलो भी रह सकता है, मुकेश अंबानी के पास तो 500 किलो भी रह सकता है। तो लुकिंग टू द स्टेटस ऑफ ए पर्सन विल बी नॉट सीज्ड। अब ये 500, 250, 100 तो मिनिमम है ही है, इसके अलावा डिस्क्रिप्शन हो द ऑफिसर, और डिस्क्रिप्शन कैसे यूज होता है आप सब जानते हैं। वेल टैक्स रिटर्न, अगर आपके पास वेल टैक्स रिटर्न है तो वो निकाल के बता दो आप कि मेरा इतना डिक्लेयर्ड है, वेल टैक्स मतलब तो 5 किलो गोल्ड डिक्लेयर्ड है, नथिंग कैन हैपन। सॉरी, दे कैन नॉट सीज, नो दे कैन नॉट आस्क सोर्स ऑल्सो। बहुत सारे जजमेंट आ गए उसके, पहले था सोर्स पूछ सकते थे, भाई सोर्स में नहीं। 500 ये इट इज इम्प्लाइड, लेकिन मैरिड वुमन के पास, भारत तो बोलते सोने की चिड़िया थी कोई जमाने में, और दूध की नदियां बहती थी, तो लेडी के, और लेडी के पास तो सोना होता ही है। लेडी आप देखो, आप बोलेंगे लेडी को 500 और आदमी को 100 क्यों? लेडी को एक्चुअली सेविंग करने की आदत होती है। आदमी के पास में समझो आज अजूम करो मेरे पास में 200 रुपया है और 180 रुपया खर्च हो गया है, तो मैं 20 रुपया अपनी साला खर्च करके ही जाएगा, घर पे खाली करके जाएगा। मैं बोला अभी कल से नहीं दूंगा चार। और लेडी के पास में वो मतलब वो सब्जी लेने को जाएगी नहीं, उसको लगता है धनिया का नहीं लिया तो 2 रुपया बच जाएगा, नहीं वो धनिया नहीं लेगी, 2 रुपया बचा के रखेगी। और 2-2 रुपया करके जो पैसा शामिल करती है, इट टर्न इनटू सम टाइम यू नो। और लेडी सबसे ज्यादा विक्टिम होती है रेड में भी। आदमी को तो मालूम है उसके पास क्या पड़ा है, 2 नंबर किधर है, 1 नंबर क्या है, दिमाग में कैलकुलेशन कर लेता है। और लेडी बेचारी 2-2 रुपया करके बचाती है और सडनली उसको 5 लाख की FDR मिलती है, जो हस्बैंड को ही मालूम नहीं है, रिटर्न में भी नहीं दिखाया है, और बाद में प्रॉब्लम होता है जी बहुत। तो लेडीज को एजुकेट करना बहुत जरूरी है। रिसेंटली 2 साल पहले एक जटिया फैमिली करके मैकडोनल्ड के ओनर है, तो उसको लगा उसके यहाँ रेड आने वाली है, तो उसने मेरे को बुला के घर के 50-100 लोगों को शामिल करके मेरा लेक्चर कराया फैमिली के अंदर कि भाई लेडी को बताओ मेनली क्या उसको क्या क्या ध्यान रखने का है और उसका क्या राइट है, क्या ड्यूटी है। तो मेरा तो कहाँ अटक गया, उसकी एक डॉटर इन लॉ थी, उसको बहुत अच्छी रिंग लगी हुई थी डायमंड की, बाद में मालूम पड़ा कि 5 करोड़ रुपये की है। तो बाद जो हाथ ऐसे करती थी तो पूरा घर में लाइट हो रही थी। तो मैं बोला साला ये है क्या, ये बार बार लाइट फेंक रही है इधर। तो मतलब कहने का उनके पास इतनी चीज, मैंने बोला उसने बोला ये रिंग है, इसके फादर ने दी है। तो मैंने कितने कैरेट के, तो पर्टिकुलर को कैरेट बोला। फिर मैंने बोला ये आपकी डिक्लेयर्ड है कि नहीं है, तो सबसे पहले इसको रिंग ही दिखेगी इनकम टैक्स वाले को। तो वैल्यूएशन रिपोर्ट लेके आई, सर 5 करोड़ की तो रिंग थी वो के लिए। तो ऐसा लेडीज को ट्रेन करना भी बहुत जरूरी है। एक्सप्लोर पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग कॉपीज ऑफ बिल्स। अगर ज्वेलरी का बिल है आपके पास, पहले की वैल्यूएशन रिपोर्ट है, समझो एक आदमी उसके बाद लास्ट में रेड आई थी 2014 के अंदर। अब 2014 की वैल्यू तो सब क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, डिपार्टमेंट ने पूरा पोस्टमार्टम कर दिया है, डिपार्टमेंट ने इन्वेंटरी बना ली है, बाद में एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं कर लिया वो सेपरेट चैप्टर पर, वो तो ज्वेलरी थी उधर। उसके बाद मैंने और खरीदी है 4 आइटम, उसका बिल अगर मेरे पास है, चेक से पेमेंट किया है, उधार लिया तो उसका लेजर अकाउंट है, तो आपका थोड़ा और एक्सपेंड हो जाएगा। वो भाईंदर वाला तो हर ज्वेलरी पर टैग लगाता था, वो तो एक एक्सेसरी था, लेकिन रियल में होना वैसे ही चाहिए, तो डिपार्टमेंट आपको कुछ बिगाड़ ही नहीं सके। इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू स्टेट दैट ज्वेलरी बिलोंग टू द फैमिली एज अ होल। अभी समझो मेरी वाइफ के पास ज्वेलरी है 2 किलो, मेरी डॉटर इन लॉ, मेरी डॉटर, मेरे, हमारे पास कुछ भी नहीं, सब उसके पास ही है। वी कैन ऑलवेज से इट ए कॉमन ज्वेलरी। तो आपका टोटल घर के फैमिली मेंबर को ऐड करके जो होगा वो मिलेगा। ज्वेलरी अप टू 500, मैंने आपको बोल ही दिया, 500 ग्राम, 250 ग्राम, 100 ग्राम, ऑलवेज ट्रीटेड ए वैल्यू एक्सेप्टेड। प्रिजम्पशन एज टू ओन अंडर सेक्शन 132(4)A। एक्चुअली क्या है, जो प्रीमाइसेस में जो मिला अजूम होएगा आपका है टिल यू प्रूव कॉन्ट्रेरी। अभी अजूम करो कि मेरे यहाँ पे रेड है, अजूम करो एक सेकंड लिए, मेरे यहाँ सुबह से शाम तक ऑन एंड एवरेज 15 से 20 क्लाइंट आते हैं कैपिटल गेन का सलाह करने के लिए। हर बार एग्रीमेंट और कुछ वर्किंग, वो सीए ने कोई वर्किंग किया होता है, क्लाइंट ने खुद किया होता है, कभी कभी वाइट का कितना और ब्लैक का कितना है, वो पूरा फाइल का फाइल लेके आता है।
बहुत बार ऐसा होता है कि वो वापस तो जाता है पर वो फाइल मेरे यहीं छोड़ के चला जाता है, या वो लूज पेपर छोड़ के चला गया, और हम भी दूसरा क्लाइंट आता है तो पहले का पेपर साइड में कर देता है। एक बार ऐसा ही हुआ कि जब मेरे यहाँ पे क्लाइंट आया दिल्ली का, एक कैपिटल गेन के लिए बहुत सालों पहले, तो उसका वर्किंग सब मेरे यहाँ छोड़ के गया। जब क्लियर कट लिखा था, ब्लैक इतना, कैश इतना, ये इतना, वो इतना, और मैं कुछ स्टडी करने के लिए मैंने ब्रीफ केस में डाल दिया वो कागज। घर लेके जाना था, घर जाने के पहले मैं देवरी बाजार गया किशोर भाई की दुकान पे, और कोई कारण से ब्रीफ खोलना पड़ा मेरे को कोई काम के लिए, तो वो कागज किशोर भाई के इधर ही रह गया। मैं सेकंड डे सोचने लगा साला पेपर किधर है, पेपर किधर है। क्लाइंट को फोन करके डुप्लीकेट मंगा लिया, और जो काम करना था वो कर दिया उसका। किशोर भाई पे 2-3 महीने बाद रेड आ गई और वो कागज मिला, और बार बार किशोर भाई को बेचे, ये 13 करोड़ चेक में 12 करोड़ केस में क्या है। अब किशोर भाई की साली वो प्रॉपर्टी नहीं है, वो बोले किधर से। तो मैं मन में देखूँ साले वही कागज मैं बहुत ढूंढ रहा था और मैंने ही छोड़ दिया इधर, तो मैं भी चुप करके बैठा। तो कहने का मतलब क्या, बहुत सारे आदमी पेपर छोड़ के जाते हैं। आपको नहीं मालूम है तो बोलो सर मेरा कागज नहीं है। सुबह से शाम तक 50 लोग आते हैं, कोई ब्रोकर आता है बहुत बार, विमल भाई इतना एग्रीमेंट होगा, स्टाम्प ड्यूटी कितना लगेगा, रेडी रेक्टर का वैल्यू कितना होता है, अपन बोलता है इससे कम नहीं कर सकेगा, इससे ज़्यादा नहीं कर सकेगा, समथिंग वॉट एवर, और वो पेपर छोड़ के चला गया। या विमल भाई आप हमारे पास रखो, आई विल कॉल यू आफ्टर 2 आवर्स, तो आपको रेफरेंस के लिए रहेगा, और रेफरेंस के लिए रहेगा, और पेपर तो रह गया परमानेंट मेरे पास ही, परमानेंट रेफरेंस हो गया उसका। तो ये आपका नहीं है तो डिनाई कर दो। वो टाइम जो डिनाई कर दिया नहीं, वो काम पक्का हो गया। हाँ आएगा। अभी सीए में देखो, मैं ये बात बता रहा हूँ, ग्वालियर महाराजा पे रेड आया तो हमारे डीएम एडिसन कंपनी पे भी आया। डीएम एडिसन कंपनी वन ऑफ द लीडिंग सीए फर्म थी, एडवोकेट फर्म थी, लीडिंग नंबर 1 बोलेंगे तो भी बुरा नहीं है, वो जमाने में। अभी तो सर की डेथ हो गई 17 साल पहले, और मैंने उसके साथ 11 साल काम किया। डीएम हरीश के बाद ग्वालियर महाराजा की रेड आई तो साहब को आके सीधा पूछा, सर हम आपके इधर भी रेड करने हुआ है, सर्वे नहीं है, और ग्वालियर महाराजा का सब फाइल हमको आप दे दो। तो साहब ने फाइलिंग क्लर्क को बुलाया कि ग्वालियर महाराजा का 104 नंबर का फाइल है, वो कपड़े इनको दे दो, इनको जो देखना था देखो। फिर भी उसको डीएम हरीश साहब का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने का था, रात को 4 बजे तक साहब का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। अब सीए का क्या पार्ट था, अब वो तो डीएम हरीश थे, इसलिए कुछ हुआ नहीं। ऐसा एक दूसरा सीए पर रेड हुआ कालबादी एरिया में, क्लाइंट पे रेड था, 5 लोगों के यहाँ एंट्री दी थी, लोन लिया हुआ था। तो एक रेड आया था मेन तो किशोर भाई के पास, किशोर भाई के पास में इन लोगों के यहाँ पे, किशोर भाई के पास में इन लोगों से लोन लिया हुआ था। तो डिपार्टमेंट सैंपल बेसिस पे 5 लोगों को कवर किया। 5 लोगों ने बोला कि हम तो जानते नहीं है किशोर भाई कौन है, हमारा सीए है, उसने उसको चेक दिया होगा, और हमारा ये पर्टिकुलर नाम का सीए है। तो इमीडिएटली वो सीए को कवर किया था खाली किशोर भाई के लिए, वो 5 आदमी के लिए, लेकिन वो सीए उस टाइम ऑफिस में नहीं था। उसने अपने स्टाफ ने सीए को फ़ोन किया दैट सर ऐसा ऐसा आया, ये आया, वो आया। तो स्टाफ ने, सीए ने क्या बोला, जब तक मैं नहीं आता हूँ कुछ अलाउ नहीं करेगा। रिसेप्शन में बैठा, उसको चाय पिलाओ कर। ऑफिसर अपसेट होगा। मिनट वो फाइल निकाल के देख रहा था, हर फाइल में चेक बुक थी, स्लिप बुक थी, पासबुक थी, और कंप्यूटेशन था, और सब फाइल में नॉन एंड एवरेज ऐसे ही ट्यूशन इनकम, पापड़ बनाने का इनकम, अचार बनाने का इनकम, मतलब सब इसी टाइप की कैपिटलाइज फाइल थी। जब तक वो उसका सीए आया तो डिपार्टमेंट ने, अभी वो सीए था, थोड़ा होशियार तो था ही, तो उससे उसको जवाब दिया, सर आपका अथॉरिटी क्या है, मेरे को ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, वो बताओ। तो उन लोगों ने, एक्चुअली सर्वे हुई थी वो टाइम पे, सर्वे को कन्वर्ट कर लिया सर्च में, और सीए का सब फाइलें सीज कर दी, और बहुत बड़ा मामला हो गया। अगर वो 5 फाइल उसको दे देता था तो उसका मामला कुछ था ही नहीं। वो आए थे 5 केस के लिए, तो अभी वो 505 की जगह 500 फाइल उससे चली गई। सो सीए को भी कवर कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम में टाइम, ऑफिसर कौन है, अपना क्या नेचर है, वो हिसाब से उसको सेटिंग करना पड़ता है। वो तो ठीक है। आपका है, यस, देन यू टू से मेरा नहीं है। सिंपल डिनाई। अगर आपको मेरा नहीं है और क्लाइंट को ट्रांजेक्शन करके बैठा तो मेरे को क्या करना है? देन so if it is not your, you have to prove it, that's it. Otherwise if you assume कि जो आपके इधर है वो आपका है। अच्छा, डिपार्टमेंट जैसे आपका जगह में एंट्री करेगा, व्हाट क्वेश्चन बिगनिंग में वो पूछेगा, तो वो भी केयरफुली जवाब देने का है। आपका बिजनेस क्या है, कहाँ पे आपकी फैक्ट्री है, कहाँ पे शॉप है, कहाँ पे गोडाउन है, कैश, ज्वेलरी और अदर वैल्यूएबल आइटम्स आपके घर पे है कि नहीं है। 4 चीज पे ध्यान रखो, कैश, ज्वेलरी, अनअकाउंटेड इन्वेस्टमेंट, अनअकाउंटेड एक्सपेंडिचर। घर पे कोई रिसेंटली कुछ शादी हुआ है क्या, फंक्शन हुआ है क्या बड़ा, जिसमें बड़ा कुछ हिसाब किताब हुआ है, वो आपको पूछेगा, वो नोट करेगा। फिर बाद में पूछेगा खर्चा कहाँ से हुआ, ये कहाँ से हुआ, वो कहाँ से हुआ। फिर लोकेशन ऑफ द फैक्ट्री, फैक्ट्री कहाँ पे है,
वो तो पहले से ही समझ के ही आते हैं। जिस दिन आपके यहाँ रेड आ गई, वो घर पे फैक्ट्री, शॉप, गोडाउन सब कवर कर लेते हैं, लेकिन फिर भी क्रॉस वेरीफाई करते हैं आके आने पर। लॉकर कितने हैं, कौन सी बैंक में है, कौन सी ब्रांच में है। एनी एसेट बिलोंग टू दी फैमिली पार्टी वेदर प्रेजेंट और योर प्लेस। यानी दूसरे आदमी का, मेरी बेटी ससुराल में शादी की हुई है, तो क्या उसकी ज्वेलरी आपके यहाँ घर पे पड़ी है? या मेरी मदर का राजस्थान में रहती है, क्या उसकी ज्वेलरी मेरे घर में पड़ी है? तो ऐसा है तो दूसरों का किसी का आपके घर में पड़ा है, रिलेटिव का, तो वही बता दो। तो बाद में आप नहीं बोलोगे ये अनअकाउंटेड है कि अकाउंटेड है। इसके अलावा प्रीलिमिनरी स्टेटमेंट में एक आदमी के क्या घर में 3 लॉकर था, उसे 2 लॉकर बता दिया, तीसरा बताया ही नहीं। फिर बाद में हुआ क्या, एक चाबी मिल गई 3 लॉकर की एक साथ में, कागज मिला, लॉकर नंबर दिस, लॉकर नंबर दिस, लॉकर नंबर दिस। उसने बोला ये लॉकर तो मेरा है नहीं। उसने बोला लिखा हुआ तो है आपके नाम पे। उसने बोला मैंने नहीं लिखा है, किसका लिखा हुआ मुझे पता नहीं, मेरे तो 2 ही लॉकर है। डिपार्टमेंट ने तीसरा लॉकर भी चाबी सीज कर ली। उस एरिया के सब बैंक को लिखा ये लॉकर का चाबी है, मालूम नहीं पड़ा किधर का है। अभी तो खैर वो रेड हो गए, 20 साल हो गया, अभी लॉकर तोड़ के उसने ज्वेलरी निकाल दी, और जिसकी रियल में ज्वेलरी थी उसकी डेथ भी हो गई, उसके बच्चों ने निकाली। तो कहने का मतलब है कि डिपार्टमेंट के पास भी इतनी मशीनरी नहीं है। अब यहाँ पे तो चाबी भी मिली, उसका लॉकर नंबर भी चाबी पे था, नंबर मिला, और कागज भी मिला कि हमारे 3 लॉकर है, फिर भी डिपार्टमेंट कुछ भी नहीं कर सका। एक लेडी के यहाँ पे पूछा गया, मारवाड़ी लेडी थी, कि आपका घर का खर्चा कितना है। अब वो लेडी बेचारी, वो लेडी ऑफिसर ही थी साथ में, बोला माता जी अभी तो भाव बहुत बढ़ गया है, चीज़ का कितना महंगा हो गया है, खाने पीने का सामान, और बोली हाँ बहुत महंगा हो गया है, पहले मैं 5000 में घर चलाती थी, अभी 50,000 भी कम पड़ता है, तो आपका घर का खर्चा कितना होगा? बोला 50,000 तो कम से कम हो ही जाता है। तो अभी सेठ ने विड्रॉल तो 10,000 बताया बुक्स में, तो इसने वो 6 साल के अंदर 50,000 महीना, 1 साल का 6 लाख, 6 साल का 36 लाख ऐड कर दिया। मैटर वेंट टू ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल ने बोला कि आपने रेड किया है, ये मजाक नहीं किया इधर, और रेड में आपको 1 महीने का अकाउंट मिला है 50,000 का। वो लेडी भी वापस बुक लेके आई अंदर से, कॉपी देखो, मैं पूरा अकाउंट लिखती है, नींबू कितना आया, मिर्ची कितना आया, सेठ सिगरेट पीता है वो कितनी बार लेके आई। तो डिपार्टमेंट ने सीज कर लिया वो कागज को। तो हमने ट्रिब्यूनल के उधर क्या हो गया कि आपने रेड डाला है, रेड में आपको 1 महीने का खर्चा मिला है, यू कैन नॉट ट्रेवल बियॉन्ड 1 मंथ। एक उस महीने में हो सकता है कुछ ज्यादा खर्चा हुआ होगा, पहले साल में नहीं है, आप प्रूव करो। रेड में डिपार्टमेंट को भी वही प्रूव करने का है पूरा, और बाद में उसका खाली 1 महीने का ऐड हुआ, बाकी सब निकल गया। आइटम विच कैन बी सीज, अनअकाउंटेड कैश, ज्वेलरी, गोल्ड, बुलियन, लॉकर, प्रोमिसरी नोट, चेक, मैंने ऑलरेडी बता दिया, बुक्स ऑफ अकाउंट, चिट डायरीज एटसेट्रा, कंप्यूटर, हार्ड डिस्क एंड अदर डेटा स्टोरेज डिवाइसेस, डॉक्यूमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, टाइटल डीड्स एटसेट्रा। 6 साल में कुछ लिया है वो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट आपको सीज, जैसे समझो आज किसी पे रेड आता है, अप्रैल से लगा के दिसंबर इग्नोर करो, वो तो 9 महीना आई गया रेट का पार्ट। अप्रैल के पहले 6 साल गिनो, 6 असेसमेंट ही है तो प्रैक्टिकली 7 साल। उसके पहले आपने 2 नंबर का कुछ किया है, लिया है, पेपर मिला है, प्रॉपर्टियां लिया है, वो सब छोड़ दो। 6 ईयर प्लस 9 मंथ, ये आपको ध्यान रखने का है एनी टाइम। तो जैसे ही मार्च आता है तो खुश होने का, अपना क्लाइंट 1 साल और छूट गया, उसके बाद वाले 6 साल पकड़ो। वो आएगा तो एक इन्वेंट्री बनाएगा ज्वेलरी का आइटम वाइज, जिसमें लिखेगा सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम, ग्रॉस वेट, नेट वेट, और वैल्यू उसकी क्या है, वैल्यू रख के वैल्यू भी करेगा। तो ये आपका इन्वेंट्री, ये आपको चेक करने का बिफोर सिग्नेचर। उसके अलावा जो बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह सीज करेगा, वैल्यूएबल सीज करेगा, कैश सीज करेगा, उसके अलग अलग पंचनामा के फॉर्मेट्स हैं। और उधर देखो आप इसमें देखो सीरियली, सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, टोटल पेजेस, वो आइटम का पेज, जैसे ना वो मैंने बताया था एग्जांपल, बोरी भर के लेके जा रहे थे, उसने लिस्ट बनाया, ऐसा हर फाइल का पेज नंबर लिखना पड़ेगा, कौन से पेज से चालू होता है, फाइल नंबर क्या है। समझो 50 फाइल लेके जा रहे हैं तो उसका नंबर लिखे A1, A2, A3, A4 ऐसा, और ये पेज से ये पेज। तो कभी भी आपको फ्यूचर में कुछ निकालना है तो आप इजीली निकाल सकते हैं। कैश होगा तो 500 रुपये के नोट कितने हैं, 200 के कितने हैं, 100 के कितने हैं, 50, वो पूरा इन्वेंट्री उसमें आ जाएगा। आइटम विच कैन नॉट बी सीज, ये चीज़ें नहीं लेके जा सकते, ये अपना हक है। स्टॉक हेल्ड इन द बिजनेस, अगर आपका गोल्ड का बिजनेस भी है, ज्वेलरी का बिजनेस है, तो 1 भी ग्राम वहाँ से लेके नहीं जा सकता। पास में उन्होंने किया था, एक दुकान थी दागिना बाजार में, कपूर चंद दलीचंद करके, वहाँ रेड आया। ग्राउंड फ्लोर पे गोल्ड का डिपार्टमेंट था, फर्स्ट फ्लोर पे डायमंड डिपार्टमेंट था। ग्राउंड फ्लोर पे सब टैली हुआ, उसके पास ही था। फर्स्ट फ्लोर पे जब गए तो ओपनिंग डायमंड था 6000 कैरेट। उसको पूछा गया तो उससे बोला भी ये तो बुक्स में देख के बताना पड़ेगा, बुक्स तो विमल पुनिया के पास पड़ा है, ऑडिटर है हमारा। तो उसने बोला फ़ोन नंबर दो, मेरे को फ़ोन दिया, मेरे को नंबर लगाया नहीं उसने, पर ही ट्रीटेड ऑफिसर के ओपनिंग स्टॉक ही 0। ड्यूरिंग द ईयर जो परचेज था माइनस सेल, वो प्लस माइनस करके पूरा का पूरा डायमंड सीज करके लेके चले गए।
12 साल बाद डायमंड रिलीज हुआ, 12 साल तक तो उसका बिजनेस बंद हो गया। बिजनेस बंद हुआ तो क्या हुआ, डायमंड डिपार्टमेंट का खर्चे चालू थे, तो जो पहले प्रॉफिट करता था दैट कन्वर्टेड टू लॉस नाउ। तो 6 साल लॉस के रिफंड हुआ आगे, तो डिपार्टमेंट ने पहले 6 साल का बिजनेस तो लूज किया आगे 6 साल का लॉस भी और नुकसान हुआ। तो मैटर फाइनली वेंट टू द हायर अप, और उन्होंने बोला है कि डिपार्टमेंट का आइडिया ये नहीं कि लोगों का बिजनेस बंद कर डालो, उनका आइडिया है अनअकाउंटेड इनकम अगर कुछ है, अनअकाउंटेड एक्सपेंडिचर है, अनअकाउंटेड इन्वेस्टमेंट है, ज्वेलरी या कैश के फॉर्म में है, उसको ऐड करो। अब बिजनेस बंद कराने का आइडिया नहीं, बिजनेस बंद करके डिपार्टमेंट का क्या भला होने वाला है। तो उसके बाद लॉ आया, स्टॉक इन ट्रेड कैन नॉट बी सीज्ड। इन्वेंट्री बनाएगा, वैल्यू कम ज्यादा है, स्टॉक कम ज्यादा, तो उसका आपको टैक्स मार सकता है बाद में, पर सीज नहीं कर सकता है। आइटम डिस्क्लोज इन द इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स रिटर्न कैन नॉट बी टच्ड। मैंने वेल्थ टैक्स में ज्वेलरी बताया हुआ है 15 किलो, तो 15 किलो उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। वो अकाउंटेड है नहीं अकाउंटेड वो बात की चैप्टर है, तो अकाउंट ऑलरेडी मैंने बता के रखा, आपके रिकॉर्ड पे है, वो आपका लेके नहीं जा सकते। आइटम अपेयरिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैन नॉट बी सीज्ड। मैंने एफडीआर किया हुआ है 2 करोड़ का, मेरा एफडीआर बुक्स पे खड़ा है, बुक्स और बुक्स वो बैलेंस शीट रिटर्न में भरा हुआ है इनकम टैक्स का, दे कैन नॉट बी टच। कैश फॉर विच एक्सप्लेनेशन कैन बी गिवन। अभी मेरे यहाँ पे कैश बुक में मिला है 20 से 1 करोड़ रुपया कैश, रेट डाली है फर्म ए के ऊपर, यहाँ पे 10 लाख की कैश दिखता है, पर मेरे यहाँ पे 25 फर्म है, देन ऑल 25 का कैशर एक ही है, ऑल कैश गोट वन प्लेस, कैश कम्स आउट ऑफ फ्रॉम वन प्लेस, तो सब फर्म का कैश पकड़ के टोटल करना पड़ेगा, 1 करोड़ होता है, तो दे कैन नॉट सीज। ज्वेलरी मेंशन इन वेल्थ टैक्स रिटर्न कैन नॉट बी सीज। गोल्ड अप टू 500 ग्राम टू, वो मैंने बोली दी आपको। ज्वेलरी एज पर द स्टेटस ऑफ द फैमिली इज टू बी एक्सेप्टेड। आपने मेरे को सर 12 बजे ओके 11:30 नो प्रॉब्लम। नहीं मैं 12 के इंप्रेशन में था एक्चुअली, इन्होंने बोला 2 घंटा लेना था, अपने 11 चालू किया था, 10 चालू किया था, 12 नो प्रॉब्लम। नो प्रोहिबिटरी ऑर्डर अंडर सेक्शन 132(3) where it is not practical to seize any books of accounts, other document, money, bullion, jewelry, other valuable article or thing, order served on the person of possession of above, such person directed not to। वो प्रोहिबिटरी ऑर्डर मैंने बताया, प्रेमनाथ का वो एग्जांपल मैंने दिया, वो आपका सेपरेट कर सकते हैं। और ये एडवाइजेबल है कि एक बार आपको लगे कि इस समय एक्सपेंसिव प्रॉपर दे नहीं सकता हूँ और वैल्यूबल है, आप बोलो सर मैं अभी सलाह करके आपको दूंगा, एक बार प्रोहिबिटरी ऑर्डर में डाल दो, तो क्या होगा, टाइम मिल गया, सोचने का टाइम मिल गया, सीए को सलाह करने का टाइम मिल गया, ऑफिसर से मीन टाइम दोस्ती हो जाएगी, तो काफ़ी आगे सर रास्ता निकलता जाएगा। It is prohibitory order issued under section 3 of section 132 of the act in respect to the current account of current account को भी डिपार्टमेंट सीज नहीं कर सकता है, बिकॉज स्टॉक इन ट्रेड वो नहीं कर सकता है, तो करंट अकाउंट भी नहीं कर सकता, उसके सब जजमेंट है, मैं भी जजमेंट बाद नहीं बताऊंगा। और पंचनामा कैसे बनता है उसका मैंने फॉर्मेट बता दिया। पंचनामा कॉपी मस्ट बी ऑब्टेन, इन्वेंट्री कॉपी मस्ट बी ऑब्टेन, कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट सीज मेक एप्लीकेशन। अगर आपका पेपर लेके गया तो उससे फटाफट कॉपी ले लो, सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई कर दो आप, तो डिपार्टमेंट आपको कॉपी दे देगा, जेरोक्स मशीन अपने को लेके जानी पड़ेगी, वो दे देगा उसको। कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट सीज, कॉपी ऑफ द स्टेटमेंट रिकॉर्डेड, वो मांग लो। अगर डिपार्टमेंट आपको स्टेटमेंट नहीं देता है तो देन यू कैन अज्यूम कि मेरे अगेंस्ट में कुछ भी नहीं है, बट दे कैन नॉट रिलाई ऑन एनीथिंग विदाउट गिविंग यू द कॉपी। तो स्टेटमेंट आपको देगा, आप उसको स्टडी करके जवाब दे दो। पेपर सीज किया, उसका कॉपी नहीं दे रहा है, तो आपको रिलाई नहीं कर सकता है। फैक्चुअल एरर, वैल्यूइंग स्टॉक, इन्वेंट्री एटसेट्रा, राइट इन केस ऑफ द सीजर ऑफ कैश। कैश अगर आपको लेके गया, आप उसको बोलोगे ये टैक्स में एडजस्टमेंट कर दो, अदरवाइज क्या होगा, पैसा आपको उनके पास पड़ा है, समझो 1 करोड़ रुपए लेके गया, 1 करोड़ विदाउट इंटरेस्ट उसके पास पड़ा है, अब 5 साल बहुत बोलेंगे मेरा टैक्स के सामने एडजस्ट करो, तो 5 साल का पैसा आपका इंटरेस्ट गया, और जो पैसा वो चार्ज करेंगे आपको अनअकाउंटेड इनकम मिला वो, देन उसके ऊपर इंटरेस्ट आपका चालू है। तो डे 1 को ही बोल दो भैया पैसा मेरा टैक्स में एडजस्ट करो। समझो गोल्ड लेके गया, अभी गोल्ड आपको मालूम है आज हाईएस्ट भाव है 132 रुपया, 1,35,000 रुपया तोला, कल क्या पता गिर गया, तो आप बोलो गोल्ड को बेचो, पैसा वसूल करो और मेरे यहाँ पे टैक्स के सामने जमा करो। कल भाव गिर गया तो मेरे को मेरा शेयर्स है बेचो, जो आपको जमता है वो सर, वो लेटर पहले ही लिख दो, उसके बाद डिपार्टमेंट नहीं करता, देन आई एम नॉट इन फॉल्ट, देन फॉल्ट ऑफ द डिपार्टमेंट। डैमेज फाइल पिटीशन फॉर लॉस, अगर आपका कोई उनके बेवकूफ़ी के कारण अपना लॉस हो गया है, मेरा सोफा तोड़ दिया, फर्नीचर तोड़ दिया, मिला कुछ भी नहीं उसको, खाली दुखी करने के लिए वो काम किया है, मेरा स्टॉक को फ्रूट के प्रोहिबिटेड ऑर्डर डाल के 5-6 दिन बाद निकाला, मतलब कर हो चुका, यू कैन फाइल केस अगेंस्ट द डिपार्टमेंट फॉर द क्लेम। रिट्रैक्शन, अगर आपको प्रेशर में स्टेटमेंट ले लिया है, फटाफट जितना जल्दी होगा रिट्रैक्शन करो, कि मेरा लेडी स्टाफ को घर से जाने के नहीं दिया, मेरे को सोने को नहीं दिया, मैं 4 दिन तक बिगर खाए पिए ऐसे ही बैठा रहा, तो मैं तो एंड में आके दुखी हो गया कि जो लिखने का लिखो मैं साइन करता हूँ,
सो आई एम रिट्रैक्टिंग, और ऐसा थोड़ा स्टोरी बना लो और उसको रिट्रैक्शन स्टेटमेंट करके जितना जल्दी हो उसी ऑफिस के बाद फाइल करो जिसने रेट डाला है। एनी डॉक्यूमेंट और स्टेटमेंट थर्ड पार्टी का मेरे यहाँ पेपर वैल्यूबल चीज हो गया है, मस्ट आई टेल द थर्ड पार्टी कि तुम लिख उधर कि तेरे को ये पेपर रिलीज करे। घर पे शादी है, रेड आ गया, घर पे मेहमान आए हुए, सब अपना ज्वेलरी बुल्ली लेके आए, मतलब उनका ज्वेलरी रेड वाला लेके गया, वो तो मेरा है भी नहीं, तो दे कैन फाइल ए केस अगेंस्ट देम। मतलब 11 से चला सकता हूँ। इन रिस्पॉन्स ऑफ द समन अटेंड आंसर, कर को समन करता है आप उसको जवाब दो। एक बार डॉक्टर था, एक बहुत बड़ा, आपको बताता हूँ, हार्ट का बड़ा डॉक्टर था जस्तोक हॉस्पिटल का, उसके यहाँ पे रेड आ गया, पहली बार रेड आया। वो मेरे बॉस के पास आया, डी मरीज के पास। डी मरीज साहब को बोला कि डॉक्टर साहब हरीश साहब मेरे यहाँ रेड आ गया था और आज ऑफिसर ने मेरे को बुलाया और मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने वाला है। वो हरीश साहब ने मेरे को बुलाया, मेरे को बोला इनके साथ जाओ। तो मैंने बोला सर स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया तो स्टेटमेंट उसको देना पड़ेगा। साहब बोला यू गो विथ हिम एंड यू रिप्लाई टू एवरीथिंग। मैं गया आयकर भवन में, ग्राउंड फ्लोर में जैसे ही पहुंचे तो डॉक्टर साहब बोलते हैं मैं पूर्णिया इधर ही बैठता हूँ, आप जाओ ऊपर। वो पहले रेड डिपार्टमेंट आयकर भवन में था। बोला डॉक्टर साहब आपको तो आना ही पड़ेगा। तो 4 माले में लेके गए मैं उनको बाहर बैठाया, नाम देखा, लकीली ऑफिसर वाज नोन, चेक करके था। मैं गया अंदर, मेरे साहब बहुत बड़ा डॉक्टर है, पहली बार रेड आया है, घबर गया है पूरा, आप उसको ज़्यादा हैरान मत करना और बाद में इसको कंटिन्यू करेंगे, आज चालू कर दो कुछ भी। मैं लेके गया, डॉक्टर साहब बोला पूर्णिया में मुंह नहीं खोलेगा, तुमको जवाब देने का। मैं डॉक्टर साहब मैं दूंगा, आप चलो तो। अंदर बैठाया, डॉक्टर साहब को पूछा डॉक्टर साहब स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने की, व्हाट इज योर नेम? पूर्णिया नोज। वेयर यू स्टे? पूर्णिया नोज। हाउ मेनी चिल्ड्रंस यू हैव? पूर्णिया नोज। तो फिर उस दिन समझ गया, वो थोड़ा बहुत लिख दिया, कर दिया। सेकंड डे मैं गया उसके साथ, प्रॉपर जवाब दिया, मिन टाइम मैंने उसको ट्रेन भी कर दिया। 2-4 दिन बाद डॉक्टर ने मेरे फोन किया, पूर्णिया आपकी जरूरत नहीं, मैं ही जा रहा हूँ। मतलब ही गॉट दैट मच कॉन्फिडेंस वंस ही नो व्हाट इट इज। रिमूव कोई रेड के टाइम पे कोई वैल्यूबल ज्वेलरी पेपर वहां से रिमूव नहीं करना चाहिए। लोग सब करते हैं एक्चुअली, अलग बात है, ये करना नहीं चाहिए। ऑफिसर को मिसलीड नहीं करो। एक आदमी आया था, उसके रेड आया, वो हेड ऑफ फैमिली वही था, दीवानी ऐसा कुछ था। उसको बोला आप कौन है? बोले मैं सर्वेंट हूँ, और घर में पोता मार रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो और बोले सेठ किधर? वो सेठ तो भाग गया। आधा घंटे बाद नौकर आया, तो उसने तो ये सेठ है। तो 1 घंटे बाद मालूम पड़ा कि डिडवाना साहब तो वही है जो नीचे का जब पोता मार रहा था। तो बाद में मतलब ऐसा करने से पर्पस सब नहीं होने वाला है। ट्राई टू डिस्ट्रॉय द बुक्स डॉक्यूमेंट, उसके सामने फाड़ना बांटना चालू नहीं करना चाहिए, सामने तो नहीं करना चाहिए एटलीस्ट। अप्राइजल रिपोर्ट इज द मेन डॉक्यूमेंट, जो डिपार्टमेंट पूरा रेड में क्या क्या स्टोरी हुई वो उसमें लिखेगा, और उसके अंदर अप्राइजल रिपोर्ट एक बार बन गया, मीन आपका ब्लैक एंड व्हाइट में वहाँ पर रिकॉर्ड पे आ गया, और आईटीओ ज़्यादा करके वही ऐड करेगा जो अप्राइजल रिपोर्ट के अंदर है, और अप्राइजल रिपोर्ट का ही वापस समरी बना के अलग डिपार्टमेंट बेनामीदार ये दुनियादारी सब चले जाएगा। तो अप्राइजल रिपोर्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, और उसके पहले आप जितना जवाब दे देंगे, सवाल भी लिखेगा, जवाब भी लिखेगा, एंड दिस इज द कॉन्फिडेंशियल पेपर जो आपको नहीं मिलता सबको पहले है, ऑफिसर को बाद में मिलता है, पार्टी को पहले ही मिल जाता है। बट रियली स्पीकिंग अप्राइजल रिपोर्ट इज ए कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट बिटवीन द डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, सर्च डिपार्टमेंट टू असेसिंग ऑफिसर। तो मूवमेंट अप्राइजल रिपोर्ट बन गया, सर्च डिपार्टमेंट का क्लोज, चैप्टर क्लोज, असेसिंग ऑफिसर का चैप्टर चालू। फिर पोस्ट सर्च एनालिसिस के बाद आपको सब एक्सप्लेन करने का है क्या क्या आया, रेट कभी डाला जाएगा। वो अजूब करते हैं, आपको समन इशू किया, नोटिस भेजा, तो भी आप जवाब नहीं देंगे। पहली बार तो भेजा और नहीं दिया वो तो बराबर है। सेकंड क्लॉज में अगर आपको भेजा और आप जवाब नहीं देंगे ऐसा अजूम करते हैं, इसलिए आप रेट डालते हैं। सब बहुत सारे केसेस है, किस केस में क्या हुआ था वो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता हूं। डंप डॉक्यूमेंट, रेड के टाइम पे कोई भी ऐसा पेपर मिल गया जो आपका नहीं है, अभी आपका पेपर है तो भी आप बोल सकते हैं डंप डॉक्यूमेंट है, मेरे राइटिंग में नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं 5,000 को 5 रुपए लिख के छोड़ देते हैं, ऐसे कुछ वाउचर भी आगे आएंगे बताऊंगा मैं। तो वो सिचुएशन के अंदर भी डंप डॉक्यूमेंट पे भी डिपार्टमेंट कुछ ऐड नहीं कर सकता है, ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट है। एक केस में यहाँ तक हो गया, एक आदमी के इधर एक पेपर मिला, ये ट्रांजेक्शन चेक का है, ये कैश का है, और चेक वाला ट्रांजेक्शन बुक्स में एंट्री है, तो भी कोर्ट ने बोला है कि दिस इज नॉट रिलायबल, डंप डॉक्यूमेंट, उस आदमी का हैंड राइटिंग में नहीं है। अभी 2 नंबर का पेपर है, हैंड राइटिंग, और हैंड राइटिंग भी एक्सपर्ट में जब तक कि आपने अच्छी तरह से वर्ड जमा के नहीं लिखा होगा टैली नहीं हो सकता है। तो डंप डॉक्यूमेंट में भी कोई एडिशन नहीं हो सकता है। ये आगे मैंने बताया, अभी बहुत सारे पेपर है। वॉच पे न्यू लॉ में अलाउड है। पहले आपका ईमेल, व्हाट्सएप, वो कौन से आजकल होता है क्लाउड,
वो सब चीज़ें अलाउड नहीं थी, उसमें मिला तो कोई उसका मीनिंग नहीं था। लेकिन अभी नया एक्ट में 2025 में वो सब अलाउड है। मैंने यहाँ पे भेजा, अभी टाइम नहीं है, मैं नहीं बता सकूँगा, एक नोट है मेरा 6 पेज का, इसके बाद वही है, तो उसको आप देखेंगे कि ओल्ड रेट वर्सेस न्यू एक्ट में क्या क्या डिफरेंसेस है। तो अभी मेन अभी फ़र्क यही है, 98% ओल्ड चैप्टर ही है, कुछ चीज़ें व्हाट्सएप चैट अभी अलाउड है। नहीं, अभी अमेंडमेंट किया है लॉ में, 2025 के लॉ में डाला है। 2025 के पहले की रेडें हैं, मतलब ये 1 अक्टूबर 2024 से इफेक्टिव किया है इसको, रेड का डिपार्टमेंट का पर्टिकुलरली। उसके पहले रेडें हुई है, व्हाट्सएप चैट है, सपोर्टेड बाय नॉट अदर डॉक्यूमेंट्स में नहीं है, तो जैसे कैश बुक मिल गया 2 नंबर का और उसमें कैश पैसा और व्हाट्सएप चैट से टेली होता है, देन यू कांट से इट इज नॉट देयर, अदरवाइज नहीं है। व्हाट्सएप चैट अभी अलाउड होगी। ऐसे वाउचर मिले, एक्चुअली 15,000 है कि 15 लाख है कि 15 रुपया है, तो उस पर भी डिपार्टमेंट कुछ कर नहीं सकता। जैसे एक जितेंद्र करके फिल्म हीरो था, उसके यहाँ पे रेड आया, उसके यहाँ 2 डायरी मिली। डायरी में क्या था, कभी स्टार, कभी सन का फोटो, कभी ऐसे ही बिल्ली का फोटो बना दिया, कभी कुत्ते का फोटो बना दिया। तो उसको पूछा है क्या ये, बोला सर जब ये 2 शूटिंग के बीच में फ्री होता है तो कुछ भी बैठे बैठे करते रहता है। तो ठीक है, डिपार्टमेंट ने बोला। एक जगह लिखा था BR चोपड़ा 2 स्टार कैश 2 स्टार चेक, और वो दिन BR चोपड़ा से 20,000 का पेमेंट आया था। अभी 20,000 का पेमेंट तो आ गया, 20,000 के पेमेंट के अंदर डिपार्टमेंट ने जितनी भी डायरी में स्टार थे 10,000 से मल्टीप्लाई करके 200 करोड़ रुपए का एडिशन कर दिया। लकीली वो जमाने में एक सेटलमेंट कमीशन करके बॉडी थी, अभी तो बंद हो गई है 2021 के बाद में, तो वो गया सेटलमेंट कमीशन, और सेटलमेंट कमीशन को इतने पावर थे, 3 चीफ कमिश्नर वर द मेंबर ऑफ द सेटलमेंट कमीशन, वो डिसाइड करते थे। सबको 25-25 साल 30 साल का एक्सपीरियंस था। तो सेटलमेंट कमीशन ने बोला, अब क्या बेस पे बोला भगवान ही जानता है, कि 1 स्टार इक्वल टू 10,000 इज टू मच, बहुत बड़ा फिगर हो जाता है। तो 1 स्टार इक्वल टू 1,000 बराबर है, तब उसको मल्टीप्लाई करके कंफर्म कर लेते हैं। तो 200 करोड़ का एडिशन 20 करोड़ पे आ गया। तो दैट, और सेटलमेंट कमीशन को वो टाइम तो वो भी पावर था, नो पेनल्टी, नो प्रोसिक्यूशन, नो इंटरेस्ट, सिंपली टैक्स। मेरा क्लाइंट था मुरार का, गया सेटलमेंट कमीशन पे, ओरिजिनल तो एडिशन हजारों करोड़ में थे, फाइनली सेटलमेंट कमीशन उसको 12 करोड़ रुपये डिटरमाइन किया और बोला 12 करोड़। अभी तो पहले एडवांस में भरना पड़ता है टैक्स, पहले ऑर्डर होने के बाद भरना पड़ता था। तो उसको बोला अभी 12 करोड़ रुपया भरो, बस 12 करोड़ तो मेरे पास है ही नहीं। हमने भी सोचा है ही नहीं तो आया क्या के लिए सेटलमेंट कमीशन पे, ये तो पैसा भरना वो तो इम्प्लाइड है नहीं, वॉलंटरीली ऑफर करके टैक्स भरने का है। तो उन्होंने उसने बोला था हमने को इंस्टॉलमेंट दो, तो उन्होंने बोला चलो 1 करोड़ रुपया 1 महीने का हम इंस्टॉलमेंट देते हैं, 1-1 महीने में 1-1 करोड़ रुपया भरो 12 महीने तक, और 13वां महीने में इंटरेस्ट भर देना। तो लेकिन वो बंदी हो गया, अभी वो बात खत्म हो गई, अभी तो आपको नॉर्मल असेसमेंट भी चलना पड़ेगा। ये सब जजमेंट ही है, मैं जजमेंट बहुत नहीं करता हूँ। बेस्ड ऑन डम डॉक्यूमेंट पे अलग अलग जजमेंट्स है कि किसको डम डॉक्यूमेंट पकड़ा जाएगा, लेकिन बिलीव मी डम डॉक्यूमेंट, एक डिपार्टमेंट में 2 चीज ऐसा है, डंप डॉक्यूमेंट एंड पीक थ्योरी, ये दोनों डिस्कस नहीं है इनकम टैक्स एक्ट में किधर भी। अब पीक थ्योरी में क्या होता है कि अगर आपके यहाँ पे 2 नंबर का पेपर मिला या बुक्स मिला, लूज पेपर तो ऐसे ही डम डॉक्यूमेंट में चला जाएगा, बट बुक रेडीमेड बुक्स मिला सिस्टमेटिकली, तो भी आपको अनअकाउंटेड पैसे पे ही टैक्स भरने का है, पूरे पैसे पे नहीं भरने का है। अनअकाउंटेड हाउ विल डिटरमाइन, अभी मेरे हाथ पे 100 रुपये, समझो मैंने 5,000 रुपये बैंक में डाला, मेरे पास सोर्स नहीं है तो अनअकाउंटेड होगा। कल मैंने 5,000 निकाल लिया, 5,000 आ गया मेरे पास, वापस 5,000 डाला, तो मेरा अनअकाउंटेड, भली बैंक में 10,000 गया लेकिन डिपॉजिट 5,000 ही है। तो एक डॉक्टर था, एक डॉक्टर CV जैन करके, उसके यहाँ रेड आया, 2 डायरी मिली। डॉक्टर साहब क्या करते थे, जो भी नया बच्चा मिलता था उसका डेट ऑफ बर्थ लिखते थे, उसका मोबाइल नंबर लिखते थे, रिश्तेदारों के नाम लिखते थे। और मैंने समझ में उसका बेटा हूँ, मैंने जाके बोला आज मैंने प्लॉट खरीदा 5 करोड़ में, 2.5 करोड़ चेक में दिया, तो लिखते विमल ने 5 करोड़ का प्लॉट खरीदा, 2.5 करोड़ चेक दिया, उसको लेना देना कुछ नहीं है, और वो सब घर का स्टोरी लिख के रखता था। दोनों डायरी मिली, उसमें बर्थडे भी है, डेट भी है, फ़ोन नंबर भी है, ट्रांजेक्शन भी है। अभी किसको वाइट का पकड़े, किसको ब्लैक का पकड़े, आइटम ने जो दिमाग में आया, टेलीफोन नंबर को भी जोड़ दिया, डेट ऑफ बर्थ को भी जोड़ दिया, और ऐसा करके 500-600 करोड़ रुपए का डिमांड खड़ा कर दिया। फाइनली मैटर वेंट टू सेट ट्रिब्यूनल। अब उठ के करके मेंबर थे, उसने बोला आप इसका पीक थ्योरी बनाओ। मैंने बोला, मन में सोचा मैं पीक थ्योरी बता, अनअकाउंटेड पैसा क्या है इसमें। तो मैं बोला डेट ऑफ बर्थ में क्या पीक थ्योरी होगी, टेलीफोन नंबर, और वो जमाने में टेलीफोन 6 डिजिट में होते थे, आज होगा तो पता नहीं कहाँ पहुँच जाएगा। तो हमने बोला कैसे बनावे, तो उसने बोला दैट इज योर बिजनेस, यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू मस्ट नो व्हाट इज पीक थ्योरी। हम 1 घंटे का टाइम देता हूँ, 1 घंटे लाइब्रेरी में बैठे, हमने क्या किया, 64 पेज थे टोटल, 32 इस साइड में 32 इस साइड में, सबका हमने टोटल मारा। अभी टोटल मारेंगे, किसी का भी तो कुछ फिगर आने वाला है कैलकुलेटर पे, डेट ऑफ बर्थ भी डालूंगा तो भी आएगा, फ़ोन नंबर डाला तो भी आएगा, तो हर पेज के अंदर फिगर आई। नेचुरली दोनों फिगर इक्वल तो नहीं हो गई, कोई ज़्यादा हो गई कोई कम हो गई, तो उसने क्या बोला ज़्यादा फिगर में से कम को निकाल दो, तो एक फिगर आ गई।
इधर दिस साइड आई या दिस साइड आई, किधर तो आई, वो फिगर लिख दो कागज पे। ऐसा 64 पेज का एनालिसिस करेंगे तो आपके बाद में 32 फिगर आ गई एंड में, टोटल लगाने के बाद 32 में किसी में ये साइड ज़्यादा है, किसी में ये साइड ज़्यादा है, तो वो लिखो वापस, डिडक्ट हायर लोअर आउट ऑफ हायर, तो फाइनल मेरी फिगर आई 5 लाख रुपए की। तो हमने बोला सब निकाल दिया। बोला क्या निकाला? तो ये देखिए। बोला हाँ, ये 5 लाख इनकम है आपकी 2 नंबर की। क्लाइंट बोलता है यार ये क्या है ये? मैं बोला चुप करके बैठो, अभी अपना 500 करोड़ का टैक्स जो आ रहा है वो 5 लाख पे हो जाएगा इंटरेस्ट पकड़ के। हमने एक्सेप्ट कर लिया। तो जो मतलब पीक थ्योरी क्या है, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट सामने वालों को आप जो भी चीज एक्सप्लेन कर सको और समझा सको और सामने वाला समझ जावे, आपका काम हो गया। अब ये जजमेंट में मैं नहीं जाता। एक बार आपका रेट का असेसमेंट हो गया, देन कमिश्नर 263 में उसको होलसेल पावर है कोई भी चीज को रीओपन करने का, वो रीओपन नहीं कर सकता है। बिकॉज रेट का असेसमेंट क्या होता है, इट इज ऑलवेज अप्रूव्ड बाय द एडिशनल कमिश्नर। एडिशनल कमिश्नर का ऑर्डर कमिश्नर को कैंसिल करने का पावर नहीं है 263 में। आईटीओ का और असेसिंग ऑफिसर का ऑर्डर कैंसिल करने का है। तो रेट में एक बार असेसमेंट हो चुका, वो फाइनल है। 263 के ऑर्डर में ज्यादा नहीं जाता हूँ। यहाँ पे देखो सेक्शन 247 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 2025, अभी डिजिटल में जो जो आइटमें लिखी है, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये बुक वो बुक, सब उसमें भी आपके अभी आज में कवर हो जाएगा। क्लाउड, प्रोसीजर फॉर ब्लॉक असेसमेंट 6, अभी मैं सर 2 मिनट और लूँ चलेगा। 95 तक ऐसा रूल था, आईटीओ 16 साल तक केस रीओपन कर सकता था। एक बार रेड आ गया, और वो जमाने में क्या जॉइंट फैमिली कंसेप्ट ज़्यादा थी, तो एक फैमिली का आदमी अपना इनकम टैक्स हैंडल करता था। 16 ईयर्स रीओपन होते थे, कुछ ना कुछ आईटीओ ऐड करता ही था। मिला कि नहीं मिला, ऐड तो होना ही होना है कुछ ना कुछ 16 साल में। तो 3 तरह का पेनल्टी लगता था, कंसीलमेंट का, नॉन एडवांस टैक्स डिफॉल्टर, ये वो सब करके प्रैक्टिकली एक फैमिली का आदमी उसकी आधी जिंदगी एक रेड खत्म करने में चली जाती थी। और वो खत्म होता था, साल दूसरा रेड आ गया तो उसका जिंदगी गया उधर ही पूरा। 95 के अंदर मेजर अमेंडमेंट आया, वीपी सिंह के बाद मनमोहन सिंह साहब आए, मनमोहन सिंह के सामने कि भाई रेड में आपको करना क्या है, व्यापारी को हैरान तो नहीं करना है, कुछ इनकम कमाया है आउटसाइड बुक्स ऑफ अकाउंट तो टैक्स लेने का है। तो एक ब्लॉक असेसमेंट कंसेप्ट आया कि आपको 10 साल का एक ही रिटर्न भरना है, कंबाइंड 2 साल में 10 साल रीओपन होता था। 95 के पहले तो 16 साल था, एक रिटर्न भरो। अब एक रिटर्न में क्या होता है, समटाइम यू हैव प्रॉफिट, समटाइम यू हैव लॉसेस, समटाइम यू हैव डिडक्शन, समटाइम सब और कुछ है, सबको मिक्स करो 10 साल का और एक रिटर्न भर दो। और उसमें अनअकाउंटेबल बचता है तो बिगनिंग में तो 30% ही टैक्स था, नॉर्मल इनकम भर दो टैक्स, सरचार्ज बचार्ज कुछ है वो ऐड कर दो। फिर लोगों को लगा यार व्यापारी तो बहुत खुश हो गया साला, एक शेयर मार्केट में एक बार लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, सेटअप हो गया, तो डिपार्टमेंट वो भी नहीं देख सकता, व्यापारी बहुत खुश हो जाए। तो 2003 में उसको वापस चेंज किया और अभी 8 साल का रखा। 8 साल के बाद 6 साल लेके आया, फिर उसको वापस चलते गई गाड़ी। अभी लकीली 2024 में वापस उसने किया ब्लॉक असेसमेंट कंसेप्ट, 6 ईयर का कंबाइन इनकम करो, कोई साल में लॉस, कोई साल में प्रॉफिट, कोई साल में कुछ, सबको मिक्स कर दो। 6 साल का एक रिटर्न, अनअकाउंटेड है 60% टैक्स भर दो। तो पहले 30% था, उसने 60% कर दिया था 2 साल बाद में, पर आज की डेट में सीधा 60% है। फिर उसको सरचार्ज ऐड करो 25%, फिर उसको एजुकेशन सेस ऐड करो 78%, और 78% गवर्नमेंट का 22% अपना। अगर आपने रेड के टाइम डिक्लेयर कर दिया है तो 10% और पेनल्टी एक्स्ट्रा 84%। रेड में डिक्लेयर नहीं कर दिया है, देन आप असेसमेंट में कुछ डिक्लेयर करने वाले हैं तो मिनिमम पेनल्टी 30%। तो मिला है 100 रुपया, तो टैक्स आ गया 108 रुपया। और उसके बाद भी नहीं किया, आईटीओ ऐड करता रहा, अपील में फाइट करते हैं और आप हार जाते हैं एंड ऑफ द डे, तो 60% पेनल्टी, 78% टैक्स, तो मिला 100 रुपया, भरने का 138 रुपया। तो अभी ब्लैक रेड का थोड़ा टैक्सेस बहुत, पहले तो कोई जमाने में आदमी सामने से बोलता था मेरे यहाँ रेड आ जावे सर 30% लेके जावे, मेरी जान छूट जाती। मेरे क्लाइंट था, उसका रेड है एक बार, वो थोड़ा गर्मी खोपड़ी का आदमी था, तो डिपार्टमेंट बार बार बोलता डिक्लेयर करो, उसने नहीं डिक्लेयर किया। एंड में हम सब लोग बैठे थे, हमको लगा रियली अपने को डिक्लेयर करना चाहिए, और तो ही अपनी जान छूटती थी। 30% टैक्स है, अभी पेनल्टियाँ बहुत लगेगी, उस जमाने की बात करता हूँ। तो क्लाइंट बोलता ठीक अभी वापस रेट बुला लेते हैं। बोला ऐसा बुलाएंगे कैसे? तो गया, क्लाइंट डेयरिंग वाला आदमी होता, गया ऑफिसर के पास, साहब देखो पहले रेट में आपको कुछ मिला नहीं, अभी मैंने 5 करोड़ रुपया लेके रखा है ये सोनसो इंडस्ट्रियल गाला में, आप रेट डालो 5 करोड़ मिलेगा। बोला आपने उनको बहुत हैरान किया है पहले। वही क्लाइंट जिसने नो बोरी के अंदर बोला लिस्ट बनाओ, ये बनाओ, डिपार्टमेंट को ट्रंक नहीं दिया, फिर बाद में दोस्ती हो गई। तो ऑफिस ने बोला पक्का मिलेगा? नहीं। बोला मिलेगा। नया रेट डाला 5 करोड़ मिला। और वो भी आदमी का डेयरिंग देखो, इतना रेट होने के बाद हिम्मत कितनी, इन्फॉर्मेंट में बेटे का नाम डाला तो 10% उसको ही वापस आने वाला है।
और वो रेड में और फिर 5 करोड़ डिक्लेयर करके वो हिसाब से वर्किंग करके पीक स्टेटमेंट बना के हमने 5 करोड़ डिक्लेयर किया, जान छूट गई उसकी। आई थिंक थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच। Excel. वो पॉलिटिकल रीजन, वो सब मोदी जी का भला करे। ये रिकॉर्ड नहीं हो रहा है ना मोदी जी का नाम। I request everyone to please be seated. Please be seated.